Namaskar. Namaskar, Swagatam, welcome sir. I would like to welcome you all on our Ayush Samriddhi's 332nd journey. We are grateful to you all, dignitaries on the dais, off the dais. Tomorrow is Pushya Nakshatra actually, and all of them will be busy in Swarnaprashan. All are clinician and all will be busy in Swarnaprashan. So we kept this webinar, planned this webinar one day before Pushya Nakshatra. So today we can discuss the Pushya Nakshatra. I would like to request all speakers to communicate sequence-wise. Number one, how they prepare this Swarnaprashan, number one, how they administer, what experiences they have, what reports they have observed after Swarnaprashan. So these are some basic questions in everybody's mind. And I am requesting all speakers, because they are practicing, they are practical. Young, energetic, dynamic generation who is not going to believe without efficacy. That means efficacy is there. If they are practicing and they are promoting Swarnaprashan in West Bengal, where Ayurveda acceptance is comparatively less than Western coast. We definitely in Eastern coast, we are definitely much behind in development of Ayurveda. Then also the torch bearers of this Ayurveda, Jai, Jyoti, Sumita, all are Sayantika, Vilas Chandra. Everybody has its own name, its own field and own aura amongst Ayurvedic society as well as Ayurveda interested society. Madan sir, welcome. Pavanji, namaskar. Thank you. Agnihotri ji, pranam ji. Dubey ji, namaskar. Namaskar, sir. We are very happy to be here today on this very special occasion. And this practice of this Swarnaprashan is something that is being used for, as far as I know, for thousands of years. And people are seeing some benefit here. And the presenters today are from West Bengal. But this practice is found in almost every part of India. Now, number one, as Pavanji said, it's very interesting that in the eastern part of the country where Ayurveda has had scholarship in the past, very important from what is today Bangladesh and what is today West Bengal, there were big scholars once upon a time who, not very long ago, the book I always use here, one of the best translations, Charak Samhita, came by work in West Bengal by the old Parampara. Now, all of these people have felt there is something there in this procedure. Now, Pavanji has highlighted the recent uptake of Ayurveda may not be as high in the eastern part of the country compared to the west and the south. And this procedure is accepted, it's being used. And as Pavanji says, all of you are clinicians, you are seeing a benefit. Now, we hope to learn from you, what is that benefit you are seeing? Number one, the procedure that is used, how is it standardized? How did you learn? Where did you learn? Have you innovated on this procedure, for instance? And the big question, why do we choose this day, which is here I'm looking at the Panchang for Cambridge today, and I can see our time for the Ravi Pushya yoga timings here is for 13th of March, beginning 2:36 p.m. to 6:16 a.m. tomorrow morning. So that is our yoga here, yoga timings. And then the next one, 10th of April, then 8th of May, etc. This is the Ravi Pushya yoga. So what is special about this? In one of our earlier events, we have talked about Jyotish. I hope Alok ji and colleagues will join us today to discuss the special
uh, planetary aspects of that reasoning. Why is Pushya so special? Pushya is the time when we say Lord Lakshmi is in certain alignment, so we can. I am holding up one thesis here, one PhD thesis here. This PhD thesis was submitted to the S. Vyasa, the Yoga University in Jyotiji. I don't know if you can see the title of this thesis, And it is a thesis submitted for a PhD by a veterinary immunologist. And he is looking at the choice of nakshatra for doing immunization in animals. So there is some evidence, some biology at play, and maybe what you people are doing will add to that evidence. Although what that evidence is and what those techniques are, we will learn. The title of this thesis by Dr. Ramesh Rao. Ramesh Rao is a veterinarian, and the title of this thesis is Kala Yoga, an experimental study demonstrating the influence of time on microbes of veterinary importance from an astromedicine perspective. Now, keep in mind, for us in India, we have a worldview that accepts things like this. For us, Jyotish and making, following the Panchayana, because that is our worldview. We understand time differently. But we also use it in medical practice. Alokji, Sharmaji, and others here have given us some understanding of how these things work. So you are using it in the field and getting benefits, and we look forward to learning from you. So I leave it there. I leave it to Pavanji. But before I proceed, I just want to also convey to all who are here with us, I will repeat this message again in future events, that our programs are very exciting. We tend to give open time for everybody to discuss, but sometimes the program extends too long. Yesterday, for instance, we finished at 10 o'clock India time, which is almost 4 hours of open discussions. We would like to limit that to, say, 2.5 hours or 3 hours. As I said, I will repeat this in future events also. So let us see how to focus our thoughts onto the theme. Yesterday, we got distracted a little bit in some discussions that went off somewhere else, and it felt that we needed to touch those points also, so we gave a little bit of time. But today, we will try and be disciplined a little more. We will try and use 8:30 with Pavanji's permission, 8:30 as a cutoff time, and then we will try and wind the events down to 8:45, so that's 8:45. Before 9 o'clock, we will finish, so that we keep our thoughts focused on what we are discussing. So with those few words, I give the floor back to Pavanji. Pavanji, namaskar. Hari Om, sir. Hari Om, sir. Now I would like to request Dr. Jyoti Lakhani ji, my younger sister, very young, dynamic, and energetic gynecologist here, basically from Jammu, and now practicing in Calcutta. So right from Jammu to Calcutta, her kingdom is there. So welcome, Dr. Jyoti, welcome. Namaste and good evening, everyone. Namaste. Thank you, Pavan sir, for giving me this opportunity again and again. It's a great platform to, just give information and getting information both. It's very good, and I just hope you keep doing all this good work which you're doing. So as Madan sir has already told, we are shortage of time. So I would like to start with the due permission and respect. I would like to start my. I have not made a presentation. I will just talk about Swarnaprashan today. So basically, when I talk about Swarnaprashan and what we tell I just would like to share my clinical experience and little bit of my research on this, how I am so confident about giving Swarnaprashan to my children and to other children around me, and why it is important to give it to your child, why it is important in our society, around people around us, to know about Swarnaprashan, and then how can you prevent a lot of things in future by just involving this in your life, and how it is going to help you. So I
will consider such few queries about why Swarnaprashan is given, how Pushya Nakshatra is important. I would like to include all these small things in it. So I would like to start with simple thing which I think everybody in this meeting and around me knows. But for common people, what is Swarnaprashan? We should, we should be able to tell them. So Swarna means gold, and Prashan means which is given in the form of leha. So it is a kind of one of the jati samskara, jati karam sanskaras in Ayurveda. So sanskara, if I would like to just tell, sanskara is one of the thing which is including some positive quality in your body or in your life, and removing some negative out of that. So Swarnaprashan is one of the samskara which includes a lot of positivity. We all know somewhere or not that God is always there, and its existence is there, whether we accept this or not. So this Ayurveda is again, have come from God's own mouth. So whether sun is there or not, we accept it or not, sun is there. So likewise, Ayurveda is there, whether we accept it or not. So spiritually and uh, scientifically also, I will not say ki only we have to, just theoretically we are learning about this. No, I am telling spiritually as well as by research, and everything has been proven scientifically. Even though our acharyas were scientific only, they were scientists at that time also, because they have not given anything like that only. They have also researched, they have also done so many research on the people around them, and then finally they have come to some conclusion. And later on, with so many years, like 5,000 years history of Ayurveda, even we have done a lot of researches. A lot of doctors after that also, a lot of acharyas after that also have done their research. So if we start with the Swarnaprashan history, it has not directly connection with the Charaka. Charaka has not mentioned much about that, but after later years, there are lots of acharyas who have mentioned about Swarnaprashan and its importance in child life or in our life also. So I would like to start ki it's not important ki that time what was happening, but I am just talking about the present time, how this is affecting my child's life, how it is affecting the child of the people around me. What I have experienced in my life, I started giving this. I have two sons. The age right now is 10 and 6, 10 and 7, sorry. So, like I think 5 years back, I started with the Swarnaprashan in them. And my Ayurveda practices also has a major transfer because of my children. I started when I like my child was 1 year, around 1 year old. He had a like severe fever. I think viral fever was there, and it was not coming down after 10 days also, with allopathy medicine at that time, frankly speaking. And because everybody at home was so worried, like his fever is not coming down. We are not at that time. Even I didn't had Ayurvedic medicines with me. I was very new to Kolkata. That was my first year. So after 10 days, I couldn't breathe. I was like, I'm giving poison to my child. It started in that way. I was feeling like it's been 10 days, I'm giving this allopathy medicines, and it is actually killing my child from inside. I insisted my husband to go and find an Amritarishtam somewhere around, go and find it. And first day I gave him Amritarishtam, evening the fever was not there. And that was my, my family totally converted into Ayurveda. That was my thing. I can be it is very helpful for me to completely wrench myself into this Ayurveda. So that it was my day. And then later years, what happened? My children were suffering from this frequent, like the Kolkata climate we know is very different from other states. So what we are suffering from, like they have a frequent infections, like they had this chest congestion, they have this allergy, they have this stomach infections frequently. Not only with my child, every child around me, I used to see that. And I was in search of like, I should start with the Swarnaprashan. The first thing I did was I started Swarnaprashan and I gave them 6 months regularly. I told my husband, let it be, if it is costly, I don't mind. If it is like, it is taking some money, I don't mind. I want to give them that. I insisted. And with the grace of God, he's very helpful to me. He's always supportive. So he like accepted that, and we started giving Swarnaprashan to our children first. My children were the first kids I gave Swarnaprashan to. And then within 6 months, we have drastically seen the changes in them. I will not say this
is applicable for every child, because every child has his own immunity, every child has their own metabolism. So it works depending upon your prakriti, your dosha type, your metabolism, your digestion, because it has connection with that. But in my children, I've seen drastic changes. My children were getting infection after every seasonal changes. Now they are not getting even in a year. In a year, hardly you will see they are getting any infections. That was the first thing which I have observed in my children. So then I got so confident, I started giving it to everyone, every child around me. The children who used to visit me every month or like every 2 months, they have not visited me in years like that. Only for some mild infections in years, now they visit me. That was some clinical changes I can see in children. There was one child whose height was not increasing at all. His parents were so worried. Even right now I'm in a clinic and I have marked, few markations are there for the height also. His height has increased at least 1 feet within the like 3 months of intake of this Swarnaprashan. So all these I'm noting in my things. So these are the things, which is practically making me very strong and, recommending everyone to go for Swarnaprashan. And I am trying to keep all documentation with me just to, in case I need to show it to everyone. I need to make them confident to give Swarnaprashan to their children. Along with that, I'm not saying you don't vaccinate your child, but I am so sure about my children that by giving this Swarnaprashan, I've stopped their vaccination. Since vaccination is just working on one or other disease, but Swarnaprashan is working on multiple things. So I have stopped giving vaccination to them. That's my personal thing for my children. I'm not recommending that don't go for vaccination, but yes, if you know Ayurveda properly and if you have that confidence in your life, definitely our children are much secure, much protected with the Ayurvedic immunization rather than anything else. So this is my personal experience. Now I would like to just say a few things about Swarnaprashan. So Swarnaprashan is we are mixing Swarn in the form of bhasma, or at that time it is not mentioned clearly whether we should give it raw or it can be given in the form of bhasma, because bhasmikarana came very later in Ayurveda, not from the starting. It came very later. So I think personally, bhasma, I think it works very well because absorption is very good. So bhasma form, if we give Swarnaprashan, is better form than in the raw form or in the original form. So we always make ghrita and madhu in equal quantity. Usually it is viruddha abhi samskruta. We know that. In Ayurveda, it has been mentioned that these are viruddharas. Viruddharas are which are not satmya to your body, which are not compatible to your body, incompatible food. What they bring some toxins in your body. So see, our scientists were so, like our classics, our acharyas were so much scientific that they used to stimulate in the form of, like, you might have heard about Vish Kanya. They used to give small quantity of Visha, and then later few years that girl or that Kanya is very much satmya to Vish. And same way, this immunization works. We give madhu and ghrita in equal quantity at very small doses in different intervals, so that it helps in activation of immune in your body, along with this Swarnaprashan, Swarn. So all these, basically what it does, it develops a resistance in your body for any type of visha. In other words, it activates your adaptive immunity. In this way, the Swarnaprashan is working in your body. One of the things. Now we come to the references of Swarnaprashan. We know it comes under Jat Karma Samskara, and later in Sushruta Samhita also it has been mentioned that you should give at the birth 3 times. And then Ashtang Hridaya also it has been mentioned at birth single dose. In Sharandhara Samhita, also it has been mentioned Swan. In Ashtang Hridaya, it has been mentioned it can be given with Vacha, Brahmi, Shankapushpi, Haritaki, and Amlaki. In Sharandhara Samhita, it has been mentioned you can give Swarna only with honey. And in Rasa Ratna Samuchya, Pipali and Swarna can be given together. Later in Bhashyaja Ratnavali also, it has been the reference, we can see that. Formulations of gold in older children, like it can be given with different kind of medicines we can adopt according to the child, the type of digestion he has, the type of climate he lives in,
the type of diseases he might be suffering, or and kind of metabolism he has. So depending upon child's everything we should do. It is not like a local like home remedy, or it is not. I totally I totally absolutely I'm not agree with the thing that people are going out and buying Swarnaprashan by themselves and giving it to their children. No, it should be under proper doctor. It should be given under proper Ayurvedic doctor with proper examination of your children, and also see the changes in that. It's not like something you just keep giving on and just not noticing any change in them. I'm not saying it will not give, it will give some magic immediately. Definitely in future you will see the result, not now, not immediately. In few kids I have seen immediately also you will see the results, but maybe in few kids you will not see immediate results. But yes, definitely in future they will be protected from lots of diseases. So we can give this Swarnaprashan depending upon the type of prakriti, type of digestion, type of their metabolism, and depending upon their age, climate, all these things should be considered, and then we can apply this Swarnaprashan along with few medicines like Vacha, Shankapushpi, Brahmi, Grita. We can give this honey and Grita in normal. In normally we give honey and Grita. So we have seen lots of research, and research papers has been shown now just for the people who have not faith in Ayurveda, those who do not faith and they need some kind of proofing for them. For them, they can go through lots of research papers. I'm not going to show it right now here. Later, maybe sometimes I will just get all those papers together and show it to the people. But yes, at this moment, I will just tell few papers which has been mentioned that there is immunologically changes in the children before and after Swarnaprashan. And yes, it is being seen by our naked eyes also, and scientifically also people have done the research and they have seen that mechanism of activation of immunogenic dendritic cells by SBP, Swarnaprashan, this drops. And then we have seen in 1981 there were one research in that they have seen the response of newborn in Madhugrita, how this has helped in changing their immunity or improving in their immunity. A scoping review on the health or outcomes of Swarnaprashan in apparently healthy children. This one of the research paper we have seen how this is going to change a child's immunity. We know Swarna is the best treatment in Visha. It acts as detoxifying agent. उसका nature में है कि वो आपकी body को detoxify करता है. There are few things in Ayurvedic medicines. If we talk about minerals or we talk about plants, if we talk about anything in Ayurveda, the medicines which is plant and minerals based, all these medicines have inbuilt gunas in them. So in Swarna we have seen that उसका एक है कि वो आमहर है. It detoxify your body. It detoxify your. It is one of the very strong detoxifying agent. And Visha and Garvisha are the environmental toxins that are get injected into the body by means of vehicle, or it is like the gold is the only element told in the text to detoxify them. So this is the only element which detoxify any kind of Visha, whether it is Garvisha or normal Visha. It has a stimulatory effect on peritoneal macrophages, which may be helpful to fight against infections. Hence, it is used in neonatal period, is particularly for the inhibitions of the infections and proper growth of the neonate. That is very important. Now, next important thing is why Pushya Nakshatra. As we know, Pushya means which is to nourish. So there are different stars or nakshatras. Among them, the strongest one is Pushya. Any auspicious work we do on Pushya Nakshatra, it has some spiritual and it has some graha related time factor that enhances the quality of gold in your body, or any kind of medicine you give, any good work you do on that day will be multiplied, will be fruitful. So Pushya is basically 9th nakshatra among 27 birth star. So Pushya is ruled by Brihaspati, and that is why the Pushya nakshatra, when it comes on Thursday, should be considered as the most auspicious one. Sorry. So Pushya is considered as the most auspicious among all the stars. So we know when we translate this, Pushya means which is nourisher, the star of nourishment basically. So like how a mother take care of his children, same way Pushya can be compared with the cow also, which is very nourisher.
everything of cow you can use. Any waste of cow is to be used, can be used in different things. So basically, Pushya Nakshatra is very good for taking medicines, for even taking advice from your guru, for preparing any kind of herbs, for spiritual person to go further in their further stages, for ascent also. Pushya Nakshatra has been considered very auspicious, especially in Indian mythology and Indian astrology. The effects of small doses of gold, we have seen why there is like bhasma can be given, because nanoparticles are very easily to absorb in our body. They reaches to every part of your cell very, their metabolism is very easy, their digestion and absorption process becomes very easy for body to do, and then it can act very fast. So we know that we should not blindly faith on anything. We should not just follow anybody without investigating on that. Even in Ayurveda also, you should not just follow the person as it is, or a doctor as it is, or an Ayurvedic medicine as it is. You should always, we have to use all the available investigation test and diagnosis method. Don't blindly depend upon the test report that may deviate you from our theory. Like if HB percentage is less, we start taking iron tablet. There must be other reasons because of that HB percentage is low. Same way, Swarnaprashan also, whenever we give Swarnaprashan to our children, we should always examine the type of children's immunity, the type of digestion he is having. So don't depend upon just person is telling you anything. Ask the questions, clarify your doubts, and then start giving this to everybody, and then also see the changes in your children. If you're not finding any changes in that, you can ask. There may be some problem with the medicine or with your children or with your child. So we should not just blindly faith on anything. I think we should always examine first by using different methods, and then we can do. But with my personal experience, as Swarnaprashan is explained in Kashyap Samhita, Swarna mixed with Madhu and Grita should be given. The process was by rubbing, and then in leha form it should be administered inside. Especially first few hours are very important. The first thing we should give to our child after birth is Swarnaprashan, and that is very good. I have seen this personally in few of the patients. They believed in me and they tried this Swarnaprashan at the time of birth itself. They have given it to their children, and I've seen the changes in them. So we have seen these changes. By this, we can give Swarnaprashan to your child. Meanwhile, also ensure the metabolism of your children. Agni is very important in this, because we know that if Agni is not good, the person is not even able to digest medicine also. So don't blindly just go that, just try to follow everything. Swarnaprashan benefits, we know. Swarnaprashan is it improves the quality of improve the quality of work in your child. It improves the physical growth. It improves the immunomodulator action. It improves the your build of your child. It improves a lot of things. You will see the coordination thing, the confidence part. I think plenty of areas we have known that Swarnaprashan has worked on cognitive functions. It is definitely the research has proved that it definitely increases the cognition power. Like the patient, the children becomes extra presentable. They they become more confident. What I have seen, intelligence in their children. I have seen a lot of intelligence improved. Plenty of things. Especially, I think the first 2 years of childhood, Swarnaprashan is very important. So, Swarnaprashan and vaccination, how we can correlate. If usually in clinical practice, we come across this question very commonly, that how this is different from vaccination, and why it is better than vaccination, kind of thing. And I am not saying you stop. Again, I'm mentioning this: don't stop the vaccination of your child until you are thorough about everything and you are sure about this. You can continue both together. It doesn't harm anybody. But yes, the first and most important thing is completely developed science versus developing science. Ayurveda has already developed itself. Ayurveda is not developing science. It has already been developed. So one thing is that much clear, that we should always faith on the thing which is developed already or not in its developing stage. Second is Swarnaprashan is not
alternate to your vaccination, since different issues as we compare, we cannot actually compare vaccination with Swarnaprashan. Swarnaprashan is basically generalized, it works on your generalized immunity. It works on it, it has not one target disease. It is not targeting only on one disease. Along with that, it is not it is not for the time being. It gives you a long time effect. Like if you start Swarnaprashan at the child birth, you will see the results maybe after 40 years also. So that long changes in your child health you can see. And it has multidimensional approach, not just in one dimension we can go for. We need to uh, we need to have some education regarding Swarnaprashan. Before taking that, you should thoroughly ask, inquire, know, read, listen, and then go for research papers. And then you you confidently tell it to other, and you confidently start in your child also. And precautions must be there, because every child has his own immunity, every child has his own digestion. So we should always take care of that. So we know Swarnaprashan is a gift of Ayurveda to modern world, which should be well utilized to build a bright future of our children, a kid. Children are the future citizens of nation. Healthy children build healthy nations. This procedure does not do any miracles. That is the thing we should keep in our mind. We think we are giving Swarnaprashan and it will bring some miracle immediately. No. Rather, this is a scientific health promoting method explained in Ayurveda, which has effect later you will see in their life and immediately in few kids also. This has been widely accepted by the general public and successfully practiced in many areas of the country and attracted the public towards Ayurveda. The brain promoting, strength promoting, and immune benefits offered by this procedure need to be properly documented to assess the success rate. That we should do. So I conclude my this thing here, and I hope this can be of any help to anyone. Thank you, everyone. Good luck. Excellent, as usual. Excellent, Jyoti, excellent. Thank Sir, you, sir. Madan sir. Jyoti ji, there is one, I'm going to break the flow. There is one simple short question from Rajan Patankarji in Mumbai. He says, how to assess the Agni of a child, infant or a child? Sir, please repeat the question now. How to analyze the Agni of an infant or a child? How do you analyze, how do you assess the Agnis? Agni works same like an adult, like we do the Dashvid Parikshan, same, like the quantity of food they take, the time they get to digest it, and their development, their growth, how they are developing compared to any other child, how hungry they often are, how active the child is, and how quickly he responds. There are Dashvid Parikshan which we do in normal people. By that Parikshan only we access this thing in child. Suppose a child suppose a child is having Tikshna Agni. So we should avoid regular giving of Swarnaprashan. First we have to work on their Agni and metabolism, then we will start with the proper Swarnaprashan, like that. Thank you. Jyoti, we'll come back to this question. I hope you will be staying with us till the end of the event. So Rajanji Yes, might have thank something you. to add, but we will leave it for the end of the event. Pawanji. Now I would like to request Dr. Vilas Chand Sarkar, my friend and younger brother from Durgapur. He is the founder Vyadhi Vidhan Ayurveda Clinic in Durgapur and very renowned. Welcome, welcome, Dr. Vilas. Welcome. Namaste, namaste, sir. Vilashji, namaskar. Namaste, sir. Namaste. Ragadhirogan, Shadatanusaktan, Asheshakaya, Prashitani Shesha, Udshokamoha Ratida Jaghana, Yapurva Vaidya, Namastute Tasmai. First of all, namaste everyone. The discussion is about Swarnaprashan. I have very little experience about the Swarnaprashan. I am basically a practitioner, so I am totally talk about the what are my clinical experience.
So the question is that the benefit procedures and time this thing. So in Sharnapashana, the materials is that Madhu Ghritam, Bacha, Manduk Parne, etc. and Sharna. So Sharna is a first of all is thing is that Sharna is a best Rashayana, and second thing is also that Ghritam is the best Snehana, and also Madhu is also a very good Anupanam. So the preparation is a excellent preparation. And all the materials is work on the benefit is that the Medha, Agni, Balavardhanam, Ayusham and Varnakaranam. This is the benefit of Sharnapashana, which told in our Shangita. But in practical aspect, what we see, this is the main matter. In practically, I am doing this thing since 2 years, and on an average, I am given in 20 to 25 children per month. So before giving the Sharnapashana, the most of the children are suffering from uh, sneezing, 1 and 2 month gap, some fever problem, some uh, digestion problem. This is the common problem now in all children because of many things, because of the surgical intervention at the time of delivery, the cesarean section, and also for that most of the practices now is the immature baby are producing. So uh, that's why the most of the children are suffering in this common problem. But after giving this Saranapashana, I seen that the children are very good, well, and they have not suffering this kind of problem. So it's my one of clinical assessment. Second is that one thing I seen one autism children in my clinic. His age is 4 years, and he's not able to talk. But after giving Sarnupasana 2 dose, he is now able to talk. So it's a good thing I see in my practice. Now I just talk about this procedures. The procedures is Dr. Lakhani already said about the procedures. By he said that equal quantity of madhu and ghritam taken, and he given the example about the Vishwakarna. But I am think little difference about this matter, because in the childhood age, the children is in kapha condition. Kapha is more. That's why I am in my practice. I am giving Sharnapashana Vilash ji, we have lost your voice. आपका आवाज कट गया था. sorry. Because madhu is slash mahara. So that's why I am given madhu is in larger dose and ghritam is little dose. And and all the thing is and same. The Sharna is I am using, because in Samhita they are said that just take a Sharna Shalaka
and just उसको घस के जो मैटर आता है उसको लेना चाहिए. So I am using Sharna is 1 pinch for 1 dose. बिलास जी And now, बिलास जी अगर हिंदी में आसानी रहेगा तो हिंदी में कर दीजिए प्लीज. ठीक है सर, कोई बात नहीं. So now I am talk about the time. The time is I think the time is morning time is best. पुष्यानुक नक्षत्र is वो तो ठीक ही है, पुष्यानुक नक्षत्र. बट पुष्यानुक नक्षत्र में भी एक मैटर आ जाता है कि वो पूरा दिन चलाता है कोई कोई लोग. बट आई थिंक ये अगर मॉर्निंग में किया जाए तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि मॉर्निंग में व्यान का काल होता है, और व्यान का काल में अगर हम लोग शरणप्राशन करें तो ये पूरा शरीर में चले जाते हैं. तो व्यान जो है पूरा शरीर में व्याप्ति है, इसीलिए इसको अगर हम लोग मॉर्निंग व्यान काल में दे तो आई थिंक इट्स अ मोर बेनिफिशियल. But also we can practice in a practical aspect for whole day. And there is Medha, Agni, Valavardhanam, Ayushan, Varna. Always we are Medha means we are talk about the improving intellect. अग्नि बोलते हैं तो हम लोग डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. बल मतलब फिजिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं. बट नॉट लाइक दैट द थिंग. द मेधा इज improving intellectual is the only one thing. But in that matter, the language factor, the cognitive factor, the neuromotor factor, and the behavioral factor also is improving in Sharnapashanam. As like that, when we are going in Agni part, there is the digestion and metabolism. Digestion and metabolism, not only the normal digestion, the metabolism in the level of the cell metabolism. As like that, if we are coming in the Vala section, is not only the physical strength, is the strength of the is like that. When we are taking the this Sharnapashana, the Rasharakta Mangsha Medasya Majja Shukra, that is the Shapta Dhatu, this all the things are producing in a very good form. That's why the last portion when we are coming in the Ayusham and the Varnam, when complexion कब अच्छा होगा, जब ये रस राक्त मांस मतलब सप्त धातु जब बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा. आयुष्यम जब हम लोग ये पूरा मतलब जब रस राक्त मांस में तो मज्जा शुक्र आता है, तब हम लोग आयुष्यम में आ सकते हैं. सो थैंक यू. दिस माई मेरा एक छोटा जो एक्सपीरियंस था वो आप लोग से शेयर किए हैं. शायद कुछ अगर बेनिफिट हो तो हमको अच्छा लगेगा. थैंक यू. विलास जी, थैंक यू वेरी मच. आपसे एक सवाल हमारे साथ है दोमा जी, हमारे साथ तेलंगाना से. दोमा जी की अगर चैट बॉक्स में देखो तो दोमा जी ने एक सवाल कुछ उठाया कि घृत और मधु should be in unequal proportions. इसके बारे में थोड़ा बताना जी. हाँ, उसी के बारे में हम बोल रहे थे. मधु जो है, मधु है श्लेष्म हरा. एंड इन चाइल्डहुड हम लोग अगर थ्योरी पार्ट में आ जाता है, सूत्र स्थान में अष्टांग हृदय चरक कहीं पे भी आ जाए तो वह उधर हम लोग को क्या बोला है कि जो चाइल्डहुड एज है उसमें जो है उसमें कफ वृद्धि होता है. मिडिल एज में हम लोग का पित्त वृद्धि होता है और ओल्ड एज में इन जनरल वायु वृद्धि होता है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन दिस अनइक्वल प्रोपोर्शन बिकॉज मधु इज श्लेष्महरा. सेकंड थिंग इज दैट थोड़ा कितने लेते हो जी मधु और घृत?
मधु और घी तो कितने कितने लेते हैं हम। मधु और घी तो इस डिपेंड करते हैं कि चाइल्ड का ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनका एज का ऊपर भी कुछ, अगर बहुत छोटा है तो हम लोग मधु 2-3 बूंद से स्टार्ट करते हैं, घी तो हम 2 बूंद 1 बूंद देते हैं। अच्छा, ठीक है। जब 1 ईयर्स हो जाएगा तो हम लोग मधु उनको जो है देते हैं हाफ चम्मच, और घृतम जो है दे देते हैं 10 बूंद। बट व्हेन वी आर कमिंग इन ग्रीष्म ऋतु, इन ग्रीष्म ऋतु व्हेन गोइंग इन मधु का जो व्याख्यान लिखा गया है, जो उनका गुण में लिखा गया है, तो उसमें लिखा है कि उष्ण काल में मधु को कम लेना चाहिए। तो जब हम लोग ग्रीष्म ऋतु में चले जाते हैं तब मधु का क्वांटिटी थोड़ा कम कर देते हैं। इसके ऊपर एक सवाल और जी बिलास जी, इसमें इस देर ये जो आपने जो बताया कि काल के ऊपर कैसे चेंज करनी है घृत और मधु की रेशियो, अब कोई किताब है इसके ऊपर कहीं, कुछ किसी के पास कुछ है? हाँ है ना, अष्टांग हृदय में क्लियरली वर्णन है ये चीज ना। अच्छा, अष्टांग हृदय में जो भी है सब किताब में वर्णित है। गीते के बारे में जो हम बोला, मधु के बारे में, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। अच्छा, लास्ट सवाल बिफोर आई गिव इट टू पवन जी टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट स्पीकर। आप हाउ डिड यू कनेक्ट विद अष्टांग हृदय? आप पढ़े कहाँ आयुर्वेद? आयुर्वेद तो सर बीएमएस करने के बाद हम गए थे कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर, हाँ कोयम्बटूर, उधर कहाँ? आयुर्वेद या एवीपी? अच्छा, फिर समझ गया, अब पूरा आ गया। कैसे हुआ? कैसे हो आप? मदन जी 1 मिनट के लिए, मदन जी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। दोमा जी, जगदीश्वर जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग डिस्कस करें। हाँ जी, प्लीज डोंट आस्क एनी क्वेश्चन इन बिटवीन विद स्पीकर बिकॉज़ फ्लो इज डिस्टर्ब्ड। प्लीज कीप द क्वेश्चन फॉर द वेरी एंड, दोमा जी, and please humble request, sir. I am observing daily, sir. Thank you Pavan ji, good. So Bilash ji, thank you for your presentation. Please stay with us क्योंकि सवाल होंगे काफी लोग, दोमा जी वगैरह they'll have many questions, so thank you very much. Okay, thank you sir, thank you. Please stay with us. I would like to request Dr. Soris is Assistant Professor, Rajiv Gandhi Memorial Ayurvedic College here in Kakinada. Welcome, Dr. Soris. Welcome. Thank you, Guruji. मेरा साउंड आ रहा है? हेलो बिलाश जी, अगर बिलाश जी को अनम्यूट, पवन जी, बिलाश जी कैन बी म्यूटेड। पवन जी, बिलाश जी का माइक्रो, थैंक यू, चलो थैंक यू। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ जी बिल्कुल। सौरी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, सबको प्रणाम। पहले बात तो यही है कि मैं एक बहुत बुरा स्पीकर हूँ। हिंदी और इंग्लिश मेरा दोनों ही बहुत वीक है। मैंने जब पवन गुरुजी ने जब हम लोग को फोन किए थे तो मैंने उनसे पहले बात बोला था कि वो सर मेरा इंग्लिश बहुत खराब है, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हिंदी में ठोकिए। परंतु प्रॉब्लम है कि मेरा हिंदी भी बहुत खराब है। मैं बस मेरा मातृभाषा को थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ये मेरा बहुत एक इसलिए मेरे को बोलने में समझाने में शायद प्रॉब्लम हो। आप लोग सभी यहाँ पर मेरे से सीनियर लोग हैं, देख रहे हैं हम सभी को। अगर कुछ गलती हो जाए बोलने में तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं रसशास्त्र का आदमी हूँ और दवाई बनाना मेरा काम है, और मैं खुद का दवाई से ही प्रैक्टिस करता हूँ। कंपनी वाला दवाई मैं यूज नहीं करता हूँ। और तो यहाँ पर स्वर्णप्राशन भी मैं खुद से बनाता हूँ मेरे पेशेंट के लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो स्वर्ण भस्म मैं यूज करता हूँ उसमें मैं पारद से उसका मारन करता हूँ, और उसके साथ वो जो हर्ब्स यहाँ पर मेरे पहले सब कुछ ही सबने बोल दिया है, वो बचा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, गुरुचिशत, जष्टि मधु, अश्वगंधा,
ये सब मैं यूज करता हूँ, लेता हूँ मेरे स्वर्णप्राशन प्रस्तुत करने के लिए। एक्चुअली ये जो चीजें हैं इसमें स्वर्णो मैं यूज करता हूँ 2 से 6 मिलीग्राम तक, 2 to 6 मिलीग्राम। वो अकॉर्डिंग टू एज मैं उसको देता हूँ। एकदम छोटा बच्चे के लिए कम परिमाण में रखता हूँ, थोड़ा ज्यादा एज में मैं परिमाण को बढ़ाता हूँ। और दूसरा जो हार्ब्स है उसको मैं 1/4 रति से 2 रति तक यूज करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये जो हार्ब्स है उसको मैं पहले लेकर उसको खल्व यंत्र में मर्दन करता हूँ, उसके साथ स्वर्ण को फिर मिला के उसको मर्दन करता हूँ। तो हम लोगों के रसशास्त्र में एक मैटर है कि जब हम लोग किसी चीज का मर्दन करते हैं तो उसका जो बॉन्डिंग है उसके अंदर वो ब्रेक होता है और नया वाला बॉन्डिंग तैयार होता है। तो ये इसलिए मैं उसको मर्दन करता हूँ। मर्दन करने के बाद तो उसको अनइक्वल रेशियो में मैं यहाँ पर मेरा भाई या बिलास उसके साथ मैं सहमत हूँ। मैं भी फीतो और मधु को अनइक्वल रेशियो में ही देता हूँ और दे के मैं बच्चे को खिलाता हूँ। और जिस टाइम हम खिलाते हैं उस टाइम मैं रसशास्त्र का आदमी हूँ, इसलिए वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ। तो ये मेरा पेशेंट को देने का प्रोसीड्योर है। और मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हमको मिला है तो उसमें कुछ ऐसा है कि मैंने देखा है कि मेरा बच्चे को भी मैं देता हूँ और मेरा दोस्त लोग जो है मतलब जो मेरे स्टूडेंट है, नहीं तो कोई कॉलीग वगैरह है, वो लोग भी मुझसे लेते हैं। मेरा पेशेंट भी इसको रेगुलर बेसिस में लेते हैं। तो उसमें मैंने जो अंतर देखा है उसमें जो बच्चे को, मेरे बच्चे और दूसरे सब बच्चे में जो मैंने खुद फील किया है कि उसका मेधा में वृद्धि होता है, उसका मेमोरी में उसका चेंजेस आया है। वो उसको याद अच्छी तरह रहता है, जितना वो पहले जितना याद रख सकते थे उससे उसका याद करने का जो पावर है वो बढ़ गया है। उसको छोड़ के देखे है कि वो उन बच्चों का शार्पनेस कुछ बढ़ा है और उसका फिजिकल स्ट्रेंथ और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर तो चेंज होता ही है स्वर्णों में। वो तो सभी को न्यूरोलॉजिकल फैक्टर तो चेंज होता ही है स्वर्णों में, सबको पता है। तो इसमें भी हम लोग स्वर्णप्राशन करते हुए ये सब चीज हमको देखने को मिला है। और कुछ पेशेंट्स में मैं किया हूँ, जैसे कि कुछ ऑटिज्म के बच्चे में मैंने यूज किया है। उनमें जो उनका जो चंचलता था वो ऑटिज्म के बच्चे में जो होता है एक रेस्टलेसनेस, उसको कम आते हुए मैंने उसको देखा है। उसका जो मोटर फंक्शन जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा कम हुआ है। और उसमें वो उन लोगों का एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी चलाते ऑटिज्म के बच्चे लोगों में, मेरे यहाँ पर चलता है, आप लोगों के ऊपर भी शायद चलता ही होगा। तो देखे तो उसमें बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं बच्चे। और जो सब बच्चे में ऑटिज्म भी नहीं है परंतु थोड़ा लेट में बात करता है, वो सब बच्चों में बात करने का जो प्रॉब्लम है, जो बात लेट में करने का जो उन लोगों का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा जल्दी हुआ है। और ये सब, और परंतु मेरा वो सेरिब्रल पाल्सी वाला कुछ पेशेंट में मैंने दिया था, परंतु उसमें मुझे कुछ ज्यादा फर्क अभी तक नहीं मिला है। यही बस। थैंक यू मेरा बात सुनने के लिए। Shoriji, thank you very much. You have touched on some very important, जो आपने जो एक दो चीज जो बताया कि खुद करते हो आप preparation, we will come to this point after in the discussion group. Or happy to hear that you collaborate with Bilas ji. So we will come to one or two points that are raised here. We'll come back to this. Thank you. Please stay with us till the end of the event. Pavan ji. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Excellent, Dr. Sorry. Excellent. Now I would like to request Dr. Sayantika Bandyopadhyay, Assistant Professor, Department of Kumar Bhratya, Raghunath Ayurved College and Hospital, Kontai Kanthi. Welcome, Dr. Sayantika. Welcome. Kindly unmute yourself. Thank you, Dr. Sorry. Thank you for nice presentation.
Thank you, sir. Welcome. Namaskar to Welcome. all. Thank you, Dr. Pawan sir, for providing me this beautiful opportunity. And thanks to all the dignitaries and all over who are present over here, for because this prime time of Sunday Eve, there we all are here to listening the benefits and benefits of Swarnaprashan. So now, what is Swarnaprashan? As we know that, am I audible now clearly? We can hear you very clearly, yes. Yeah. Shantika, Okay. thank you. So Swarnaprashan, as we know, that it's the administration of fine particles of gold. That is, we called as Swarnabhasma, along with some medicinal herbs, mostly which are of medhya and rasayan property. These are being added with the Swarnabhasma and given with honey and ghee to the children from birth to up to 16 years. So here the Swarnaprashan is the term that includes the intake of Swarnabhasma. Okay. Now this can be done mainly practically is done in the context. It has been mentioned that it is practically done in two ways, in Jatakarma and Lehan Karma. Jatakarma, we know that newborn care, and Lehan Karma, we know that supplements which are given for the all over benefits of the children. Now practically, I am practicing in Raghunath Ayurved Mahavidyalaya, and I have seen the gradual increase in the in the number of children who are looking forward, the parents of the children who are looking forward for receiving this Swarnaprashan. I have observed starting from 50 children. I would not call patient because they all are healthy children are also there. So starting from 50 children, and then gradually it increased 65, 80, and even 96, 100 children I have administered with the Swarnaprashan. But due to this last recent wave of COVID pandemic, it hit the number, and the numbers are again gradually dropped down. So the theoretical part, Dr. Lakhani, Dr. Bilas, and Dr. Suresh has explained very well. So what is the clinical evidence here? Some research has been carried out, and the pharmacoclinical research is done, and according to it, it has been observed that there is an increase in the humoral antibody in the children who are administered with Swarnaprashan, and which can be evident by measuring the increased proteins and serum immunoglobulins. And as Dr. Lakhani said, that it has a stimulatory effect on the peritoneal macrophage, which can also helps in fighting the infection. So this is the thing. And again, from the benefits which we observe, that it has Medha Agni Balavardhanam and Ayushya Mangalang Punyam Vrishya Varnya Grahapamam. So not only for immunomodulating, we can also see from this point of view that it has been observed that it has a very beneficial effect in the female, the reproductive systems also. Nowadays, children are the infertility is increasing a lot. So if we can observe from this point of view, so it has been observed that an administration of gold chloride at the rate of 0.2 mg per kg per day, the serum estradiol is increased. So from it opens a chance we can there is a huge aspect of research in this Swarnaprashan. Now Acharya Kashyap ji explained the benefits of Swarnaprashan, and in this, in spite of these benefits, he has also mentioned that
it has also been mentioned that if given for 1 month continuously, the baby is there is increase of intellect, and also he is free from the disease. And for 6 months, he became Shrutadhar, he can recall whatever he will listen. So there is a chance of research in this stages. So practically here, another thing is that the medicine which is given sublingually. So sublingually, absorption can easily cross the blood-brain barrier, and it can help in the intellect and help in the development of various, which we collectively called as medha. And another thing is that this Swarna Bhasma, it is Bhasmikaran means it is the nanoparticle of the gold. So it has been observed that the nanoparticle of crystalline size 28 to 35 nanometer can easily cross the GIT, and it is that the absorption is readily available. So from these things, the various aspects of research is on. And another thing is that Pusha Nakshatra, as everybody told, so I don't have any extra point in this. And another is Sablungali and this one. And practically this thing, but here I think that some on institutional basis, some on institutional. Okay, Swarna Bhasma, how is it prepared? It is prepared. I also practically do the medicine, that is 2 mg. That personally I take the Doodh Papeshwar medicine has been taken, and which contain 2 mg Swarna Bhasma. It will then undergo trituration or mardan with the unequal amount of honey and ghee, and then it is administered to the children. Depending on the age, some doses are to be varied accordingly, and then it is administered. And also it is we all try to given in the morning time of the Pusha Nakshatra, and that 1 hour prior to intake of Swarna Bhasma and 1 hour after the intake of Swarna Bhasma, these also be monitored, and we told the parents to not administer any kind of food to the children, and these things. So there is a lot of scope of research is required in this, like the actual to standardize the dose, whether the honey and ghee are to be taken in the equal quantity or the unequal quantity. So I think that some scientific research should be done in this field, so that a clear observation can be noted. Thank you. Santika, thank you very much. You have given us some more details, and there will be many questions that will come up in the discussion section. So please stay with us till the very end. There are many questions coming up already about how you prepare the Bhasma, etc. I'm sorry that we don't have respected Professor C.B. Jha here with us today. I wish he was here, because he, together with his collaborators, they have published one paper on physicochemical characterization of Ayurvedic Bhasma, particularly Swarnamashika Bhasma, and how to standardize these things. If Jha Saab was here with us, he would have guided us a little more, but he's not here. There are other people who will help us in our discussion today, but please let us move on. Pavanji. Thank you, sir. Thank you very much. Excellent, Santika. Very great. Your experiences shows the passion for Ayurveda, and really you are promoting Ayurveda, all of you. It is proud of us. We are proud of you all. So now I would like to request Dr. Sumita Jaiswal. Sumita is medical officer, Ayurvedic medical officer in Nehati. Welcome, Dr. Sumita. Request to all other
participant to keep mute mics, please. My namaste to all. Namaste Pawan sir. Thank you for inviting me here. मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? बिल्कुल जी। क्लियर सुमिता जी सर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ सर। ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम पवन सर ने मौका दिया था एज अ मॉडरेटर काम करने का। सॉरी, हेलो, सम डिस्टर्बेंस इज देयर। सुमिता जी, हेलो, we can hear you, but there is a थोड़ा सा disturbance है शायद। देखें। मैं डॉक्टर आरएन शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना माइक म्यूट रखें काइंडली। डॉक्टर आरएन शर्मा जी से मेरी प्रार्थना। थैंक यू, काइंडली कंटिन्यू डॉक्टर। ठीक है, थैंक यू। तो मैं कह रही थी कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ पे सेकंड टाइम आने का मौका मिला है आप लोगों के बीच में। फर्स्ट टाइम एज अ मॉडरेटर मैंने सर के साथ काम किया था, सेकंड टाइम एज अ स्पीकर काम कर रही हूँ। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है इस बात की मुझको। मेरी सबको मेरी तरफ से नमस्कार है, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे सीनियर्स, कुछ क्लासमेट्स भी हैं। सभी गुरुओं को भी नमस्कार। तो आज का दिन है स्वर्णप्राशन का। स्वर्णप्राशन एक्चुअली मैं का जो अपने बच्चों पे, अपने बच्चे इन सेंस मेरा अपना बच्चा और साथ में जो मेरे क्लिनिक पे बच्चे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। मैं उनको सबको स्वर्णप्राशन चिल्ड्रन बोलती हूँ, स्वर्णप्राशन फैमिली हमारी। तो वो हम कल करेंगे। डेट आज भी है, आज भी पुष्य नक्षत्र चल रहा है, बट मैं प्रिफर करती हूँ जो एज अ प्रोसीड्योर, जिस दिन हमें जिस डेट पर हमें सूर्योदय मिलता है, जैसे कल हमें सूर्योदय मिल रहा है पुष्य नक्षत्र के दौरान, तो मैं वो डेट प्रिफर करती हूँ जिस दिन हमें सूर्योदय मिलता है। एज अ हिंदू स्कॉलर हमें सिखाया गया है बचपन से ही कि हर जो नक्षत्र है उसका सूर्योदय वाला एक्सक्यूज मी, दिन एक मिनट। मैं डॉक्टर आरएन शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना माइक म्यूट रखें, कृपा करें म्यूट रखें, इससे डिस्टरबेंस होता है। हाँ सुमिता जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो हम कल करेंगे स्वर्णप्राशन अपने बच्चों पर। तो मेनली स्वर्णप्राशन की जो जर्नी है, इसके बारे में मैंने अपने बीएमएस के टाइम पे पढ़ा था, बाद में भी बहुत सारी रेफरेंसेस पढ़ी हैं, बट प्रैक्टिकल जब करने का टाइम आया वो आया मेरे अपने बेटे के ऊपर। मेरा बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको रिपीटेड इन्फेक्शंस आ रहे थे, उसकी हेल्थ थोड़ी सी डिटोरिएट कर गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वैक्सीन क्या काम कर रहे हैं, या मैं क्या ऐसा दूं कि उसकी हेल्थ सही रहे। तो एक जो चीज दिमाग में आई थी वो थी स्वर्णप्राशन। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वेस्ट बंगाल में स्वर्णप्राशन उतनी अच्छी तरीके से कोई प्रैक्टिस कर नहीं रहा था उस टाइम पे। अभी उसकी एज 5+ है, तो ये जब 2 इयर्स का था उस टाइम की बात है ये। तो उस टाइम फिर मैंने कुछ ग्रंथ को रिवाइज किया, पढ़ा, रेफरेंसेस पढ़े, अपने कुछ सीनियर्स को भी संग किया। यहाँ पे डॉक्टर सौरिदा है, भैया है, उनसे भी बात करी थी। बिलास है, मेरे क्लासमेट्स रहे हैं डॉक्टर बिलास, उनसे भी बात करी। सबको बहुत परेशान किया था उस टाइम पे मैंने कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। और उसके बाद एक जो कंक्लूजन पे मैं आई, उसके बाद मैंने अपने बच्चे पर इसको फर्स्ट स्टार्ट किया। कहते हैं जो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मैंने उसको अपने बच्चे पर स्टार्ट किया। तो करने के बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। अपने पेशेंट्स के बच्चे जो भी थे उनको भी दिया गया, रिलेटिव्स को दिया, इवन पेशेंट्स के रिलेटिव्स भी इसको यूज किए। और उसके बाद जो क्लिनिकल डाटा मुझको समझ में आया, जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए, वो ये था कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पावर ऑफ स्पीकिंग है या चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत अच्छी हो गई। बहुत सारे बच्चे जो इंट्रोवर्ट थे, वो उनके पेरेंट्स ने मुझे कहा कि वो एक्सट्रोवर्ट है अभी, मतलब दूसरों से घुल मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं अच्छे से। दूसरा जो अच्छा चीज देखा मैंने, उनकी बल वृद्धि हुई, उनकी बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन की जो बात थी वो कम हो गई। और मेधा बढ़ना तो ये क्या कहें गुण है स्वर्णप्राशन का। मेधा शक्ति बहुत अच्छी तरह से बढ़ती है स्मृति शक्ति के साथ साथ। और
स्वर्णप्राशन को कहा जाता है कि, या कहा नहीं जाता, एक्चुअली लिखा हुआ है कि आप 0 to 16 ईयर्स तक ले सकते हैं। जन्म से 16 साल की उम्र तक आप स्वर्णप्राशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं बच्चों में। उसको एडमिनिस्टर करने का जो तरीका है, जो मैं अपनाती हूँ, उसको वो है कि ऑन द डे ऑफ पुष्य नक्षत्र आप सुबह में बच्चे को अच्छे से साफ सुथरा रख के, जिसको बोलते हैं एज ए ऑस्पिशियस थिंग है हमारा ये स्वर्णप्राशन, 16 संस्कारों में से एक है बच्चों के लिए। तो मैं प्रिफर करती हूँ कि साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर बच्चे को पूर्व दिशा की तरफ फेस करके बच्चे को बिठाना होता है। और स्वर्णप्राशन की जो दवाई है, या स्वर्णप्राशन लोग खुद भी बनाते हैं या रेप्यूटेड कंपनीज की तरफ से भी आती हैं, उनको अनइक्वल क्वांटिटी ऑफ मधु और घृत के साथ मर्दन करके बच्चे को एज अ लेहन चटाना होता है। और जब ये चटाया जा रहा होता है, जिसकी जो मान्यता है, जैसे अभी शौर्यदा ने बोला, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं वो, कुछ लोग गायत्री मंत्र मानते हैं, तो मैं गायत्री मंत्र फॉलो करती हूँ, या कुछ लोग शिव के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो जो उनको चटा रहा है वो दवा, वो इस चीज का जाप करता है। और साथ में बच्चे को मैं ओम का उच्चारण करने के लिए बोलती हूँ। ओम वर्ड का जो सिग्निफिकेंस है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं बच्चे को ये प्रोनाउंस करने बोलती हूँ कि आप जब उस बच्चे को दवा को चाट रहे हो तो ओम का प्रोनाउंसिएशन जरूर रखें। और मधु और घृत सब समय अनइक्वल क्वांटिटी में ही होता है। हमारे संहिता में रेफरेंस है कि मधु और घृत इक्वल क्वांटिटी में विष है। तो मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ मधु और घृत को अनइक्वल क्वांटिटी में ही रखा जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं हर समय इस पे नोट देती हूँ। और मधु किसमें अधिक लेना है, घृत किसमें अधिक लेना है, डिपेंड करता है ऑन द चाइल्ड, प्रकृति पर डिपेंड करता है कि मुझे क्या देना है। इसको लेने के, इसको बच्चे को लेहन कराने के लगभग 1 घंटे तक कुछ भी खाना वर्जित है। मैं कुछ भी खाने को देने मना करती हूँ। उसके बाद बच्चा खा सकता है। ये हुआ प्रोसीड्यूर, ये कैसे करते हैं स्वर्णप्राशन को। स्वर्णप्राशन अभी जो कोविड काल गया, इसमें बहुत अधिक मात्रा में वेस्ट बंगाल में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है स्वर्णप्राशन कराने वाले वैद्यों में। इसका बहुत बड़ा कारण है कि कोविड काल में सब चीज ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट हुई। बहुत लोगों के पास ये प्रॉपर जानकारी नहीं थी कि स्वर्णप्राशन कहाँ मिलता है, कहाँ अवेलेबल है। तो स्वर्णप्राशन अभी आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए अवेलेबल हो जाता है। इस कारण से, इस वजह से मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में स्वर्णप्राशन ले रहे हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन द वेस्ट बंगाल, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी स्वर्णप्राशन जा रहा है। फिर दूसरे स्टेट्स में भी, जैसे गुजरात वगैरह में भी बच्चे हैं जिनको स्वर्णप्राशन मेरे थ्रू जाता है। और भगवान की कृपा है कि आउट ऑफ इंडिया, आई मीन पेशेंट्स फ्रॉम नॉर्वे, वो भी ये स्वर्णप्राशन ले रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि कोविड काल तो ये बून है हमारे लिए, मतलब बहुत बहुत बढ़िया काम किया स्वर्णप्राशन को एक्स्टैब्लिश करने में मेरे अपने पेशेंट्स में। स्वर्णप्राशन को लेकर एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि स्वर्णप्राशन में मेनली हम लोग स्वर्ण भस्म को यूज कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ण भस्म अच्छा और हाई क्वालिटी हो। कुछ भी स्वर्ण के नाम पे दे देना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उसकी अच्छी तरह से शोधन मारन ना हुआ हो, स्वर्ण भस्म को सही तरीके से तैयार ना किया गया हो, तो वो गलत है लेना। तो स्वर्ण भस्म अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जिससे उसके जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल सके। इसीलिए हमेशा स्वर्णप्राशन को ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए। आप एक वैद्य को कंसल्ट करें, देन वो आपके बच्चे की प्रकृति जानकर सही मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये कहीं पे भी ओवर द काउंटर लेने वाली मेडिसिन नहीं है। दूसरी बात होती है कि ये कोई मैजिक नहीं है, हम लोग मैजिक नहीं कर रहे। स्वर्णप्राशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्योरली साइंस है। इसको लेकर आपको कुछ मैजिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता
सकता है, प्रैक्टिकली जो मैंने समझा है। कुछ पेशेंट से बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट देखे मैंने। शेयर करना चाहूंगी, एक पेशेंट है मेरा, जिसको पेशेंट नहीं कहेंगे, रिलेटिव ही है, जिसको ट्रीट करने का मौका मुझे मिला। जुवेनाइल अस्थमा का पेशेंट था, जिसको मैंने 5 मंथ की एज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। ये 5 मंथ की एज के पहले वो हर 10वें या 15वें दिन हॉस्पिटलाइज होता था, नेबुलाइजर्स चलते थे और भी बहुत सारी जो प्रोसीजर्स होती है नर्सिंग होम्स में, वो सब चलता था। तो उसके बाद हमने उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन देना स्टार्ट की बहुत ही अर्ली एज में। उस टाइम तक मैंने स्वर्णप्राशन स्टार्ट नहीं किया था। फिर उसके ट्रीटमेंट चलते हुए कुछ दिन बीतने के बाद मैंने उसमें स्वर्णप्राशन भी ऐड किया है, और आज की डेट में लगभग 3 साल से उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। मतलब लगभग 1 ईयर का था, उसके बाद से कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। उसके पहले उसके 7 हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके थे। तो ये मेरी जिंदगी का, मेरी प्रैक्टिस का, स्वर्णप्राशन की प्रैक्टिस का सबसे अच्छा केस मैंने देखा था, जुवेनाइल अस्थमा का। और एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर सकती हूँ, बहुत ही अच्छा, एक कृष्णनगर की बच्चा है मेरा। उसका स्वर्णप्राशन स्टार्ट हुआ कोविड काल में। उसके पेरेंट्स मुझको कंसल्ट करते थे, उन्होंने अपने बच्चे के लिए यूज किया, और उनका बोलना है कि वो आफ्टर स्वर्णप्राशन उनको कोई भी अटैक नहीं आया है इन्फेक्शन का, या जो रिपीटेड इन्फेक्शन होते थे वो नहीं हुआ है, वो बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ कृष्णनगर के पेशेंट का बात नहीं है, ज्यादातर पेशेंट जिन्होंने भी स्वर्णप्राशन अपने बच्चों के लिए यूज किया, उनका यही कहना है कि वो इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। शास्त्रों में लिखा है एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको स्वर्णप्राशन यूज करना है। आप उसके बाद भी यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 6 मंथ तो यूज करना ही है। तो मैंने जब पेशेंट को अपने बच्चों के लिए ये देना स्टार्ट कराया, तो उनको कहा कि एटलीस्ट आप 6 मंथ तक इसको यूज करें। देन आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आपको इसकी इफेक्ट समझ में आती है, तो आप इसको जरूर से कंटिन्यू करें। और बाय गॉड्स ग्रेस मोस्ट ऑफ द पेशेंट, मोस्ट नहीं, एक्चुअली सभी ने 6 मंथ के बाद भी इसको कंटिन्यू किया। इसका मतलब ही है कि उनको बहुत अच्छे इफेक्ट देखने मिल रहे हैं, और मुझे भी उसका फॉलोअप मिलता है। और मैं अपने बच्चे के लिए तो कम से कम 16 इयर्स तक इसको यूज करने वाली हूँ बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये जो मैं बता रही थी, ये कोई मैजिक नहीं है। आपको अपने बच्चे की गट हेल्थ को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है, बहुत ज्यादा नजर रखना है कि आपका बच्चा का अग्नि कैसा है। थोड़ी देर पहले डॉक्टर बिलास ने शेयर किया कि अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि मैंने मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि अगर मैंने पूछा था, सर अगर कोई रोग असाध्य लिखा हुआ है आपके शास्त्रों में, तो क्या उसको ट्रीटमेंट करूं या ना करूं? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर तुम उस पेशेंट का अग्निवर्धन कर सकते हो, अगर तुम उसकी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर या जो भी धातु अग्नि, सिर्फ अग्नि जठराग्नि नहीं होती, धातु अग्नि भी है, तो अगर उसका अग्नि बढ़ा सकते हैं, अगर उसकी अग्नि को आप इनहेंस कर पा रहे हैं, तो आप उसको जरूर से जरूर ट्रीटमेंट दीजिए। अगर आप उसका अग्नि नहीं बढ़ा पा रहे, देन उसको आप ट्रीटमेंट देकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अग्नि इज सो मच इम्पोर्टेंट इन अ पेशेंट कंडीशन को ठीक करने में। तो अगर आप किसी बच्चे को स्वर्णप्राशन दे रहे हैं, देन उसके पहले उसकी अग्नि को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसका डाइजेस्टिव फायर कैसा है, अगर क्या वो मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं। तो मैं प्रेफर करती हूँ प्रत्येक बच्चे को, जो भी पेशेंट मेरा स्वर्णप्राशन ले रहा है, उसके बच्चे का अग्निवर्धन कुछ समय के लिए मैं करती हूँ, देन उसके बाद स्वर्णप्राशन देती हूँ। देन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। डायरेक्ट स्वर्णप्राशन स्टार्ट करने से अच्छा है कि पहले अग्निवर्धन कर ले हम उस बच्चे का, क्योंकि हमें पता है स्वर्णप्राशन, स्वर्ण भस्म जो है अच्छी खासी कॉस्टली मेडिसिन है, तो उसको बिना मतलब का यूज करने का कोई ये नहीं है। पहले अग्निवर्धन करें, देन स्वर्णप्राशन स्टार्ट करें। नेक्स्ट होती है स्वर्ण का जो रोल है, वो तो सभी को पता है। अभी कोविड काल में तो जगजाहिर हो गया है स्वर्ण भस्म कितना अच्छा काम कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को हम लोग स्वर्ण भस्म दिए हैं जब भी कोविड का कोई क्रिटिकल पेशेंट आया है। तो स्वर्ण भस्म की यूजफुलनेस को साबित करने के लिए कोविड काल बहुत बढ़िया रहा है। तो और मेरे पास कुछ नहीं है बस बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं इतना कह के अपना
वक्तव्य समाप्त करती हूँ। Sumita ji, thank you very much. You have touched on 3-4 point you have raised, which Patankar ji has also asked, Agni ke baare mein. Very, very important point that you have raised. Achha, I think all our presenters have given us many perspectives. Shuruaat, we had a little confusion about the ratio of grit or madhu. I think that is becoming clear. इसको कैसे variation कैसे करते हैं आप लोग, इसमें थोड़ा detail लगता है, थोड़ा clarification आ गया हमारे पास. अब इसके राजन जी मुंबई से, राजन जी के सवाल है, अग्नि कैसे assess करते हो infant और young children में? आपके क्या experience है सुमिता जी? बच्चे मतलब बिल्कुल infants, मान लो 6 months और up to 16 that you are talking about, कैसे करते हो इसकी अग्नि असेसमेंट? जी, आप जो बोल रहे हो ना सबसे छोटे बच्चे, मेरा यंगेस्ट जो स्वर्णप्राशन चाइल्ड है वो 2 months का है. 2 months की बेबी, एक्चुअली उसको मैंने फर्स्ट मंथ में ही स्वर्णप्राशन दिया, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया. तो उसको स्वर्णप्राशन देने के पहले मैंने उसकी माँ से पूछा था कि उसकी लैट्रिन कैसी हो रही है, स्टूल पास कैसा होता है. स्टूल पास पर निर्भर करता है कि उसकी अगर जैसे हमारे में कॉन्सेप्ट है आम की, आम अगर आ रहा है उसके स्टूल में, तो इसका मतलब उसकी अग्नि डाउन है, क्योंकि उसमें आम बन रहा है. अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आ रहे हैं उसके लैट्रिन में या स्टूल में, तो उससे भी एक निर्धारण होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कैसा कर रहा है, क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग खुद से कर पाता है, क्या वो शक कर पाता है ब्रेस्ट मिल्क को, इस पे डिपेंड करता है. वो कितना एक्टिव है, बच्चा कितना एक्टिव है, रोता है या नहीं, क्योंकि उससे भी लंग की जो कैपेसिटी है वो पता चलती है. बच्चा खुद से दूध मांगता है या नहीं, ब्रेस्ट मिल्क मांगता है कि नहीं, या आप जबरदस्ती दे रहे हैं उसको. बहुत सारे माएँ होती हैं वो नहीं पीता है तो उसको बॉटल्स में भर के पिला देते हैं. ये उसकी अग्नि का निर्धारण गलत है. हाँ, अगर वो खुद से ब्रेस्ट मिल्क सक कर पा रहा है, इसकी मतलब उसको नीड है, बहुत अच्छी नीड है, और उसकी शरीर की पावर भी उस तरह से है. अगर अग्नि सही है, बॉडी सही है, सिंपल सी बात है. आप जो अभी जो ये फंडा चला है ना इम्यूनिटी का, कोविड काल में बहुत अधिक बात चली है इम्यूनिटी की. इम्यूनिटी मेरे ख्याल से, मेरी हिसाब से अग्नि है. अग्नि इज सो मच इम्पोर्टेंट. अगर आपकी अग्नि सही है, आप खाने को डाइजेस्ट कर पाएंगे. खाना अभी किसी को भी गलत नहीं मिलता है, सभी न्यूट्रिशियस फूड्स खा रहे हैं, फिर भी कुछ बीमार हैं, कुछ सही है. ऐसा क्यों है? तो वो फूड पे डिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे. आप उस खाने को किस तरह से पचा रहे हैं और उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं. अगर वो सही जगह. Stop you here. How do you assess Agni in the slightly older? आपने बताया जो infant में कैसे करते हो, you do the परीक्षा and you ask question. Slightly as the child gets older, 5-6 साल की या 12-13 साल की या कैसे करते हो आप उसमें कैसे? Where is the difference clinically? You are in the field. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मल परीक्षा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. उसकी भूख लगने की क्षमता कितनी है, भूख लगती है या नहीं, 2-3 पॉइंट्स ही है, उससे अग्नि निर्धारण हो जाता है. आप खाने के बाद आपको सही महसूस होता है या नहीं, कहीं आपको गैसेस वगैरह तो नहीं बन रही. ये जठराग्नि का लेवल है. धात्वाग्नि का अलग लेवल है, धात्वाग्नि बहुत डीप जा रहा है. जठराग्नि का ऊपर का लेवल इन्हीं सब बातों से समझ में आ जाता है कि आपको खाना हजम हुआ है या नहीं, आपको कितनी देर के बाद भूख लग रही है. अगर भूख लग रही, रात का खाया हुआ अगर खा रहे हैं आप, सुबह आपको खुल के भूख लग रही है या नहीं, आपकी मोशन क्लियर है क्या नहीं, इन्हीं सब से अग्नि का निर्धारण बहुत इजीली हो जाता है. Sumita ji, please wait with us. यहाँ राजन जी ask ने जो बताया whether he has some different thoughts. अग्निहोत्री जी से एक सवाल है जी. मैं तो आदरणीय राजन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को गाइड करें कि हाउ टू असेस अग्नि ऑफ इन्फेंट्स. राजन जी is very much senior. I would like to request him to guide this generation that how Agni is determined in
infants. Kindly guide, Yes. sir. यस यस नहीं, अभी तक जो अग्नि के बारे में जो चर्चा हो गई वो बहुत ही अच्छी थी, पॉजिटिव थी। तो उसमें मेरा एक ही कहना है कि सिर्फ बच्चों के बारे में या इन्फेंट्स और चाइल्ड के बारे में उसका मल परीक्षण करने के साथ साथ उसका मूत्र परीक्षण या बेड वेटिंग वगैरह है नहीं या है क्या नहीं है, तो ये भी देखना जरूरी है। और उसकी मुंह से जो लाड़, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो कभी आता है क्या रात में, क्योंकि वो भी एक अग्नि का परीक्षण है। अगर उसमें सलाइवा ज्यादा पैदा हो रहा है, इसका मतलब उसका जो ट्रैक है वो सही तरीके से नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए ये 2-3 बातें, और उसकी जो नींद पैटर्न है, सोने का जो ये है, वो भी सब अग्नि के ऊपर निर्भर रहता है कि वो रात में कभी बीच में रोते हुए उठ जाता है क्या, या कभी एकदम ऐसा शिवरिंग करके उठता है क्या। ये भी बातें बच्चों में देखनी जरूरी है। ऐसा एक मेरा असेसमेंट है कि मैं तो सीनियर हूँ, पर बच्चों में भी बहुत देखा हूँ। और एक बात है कि स्वर्ण प्राशन ये सिर्फ उसी दिन देना है क्या, डेली देना है। तो मैं जो भी मेरे बच्चों को देता हूँ, मेरे पास जो आते हैं, उनको मैं बाद में डेली एडवाइस करता हूँ, क्योंकि वो दिन से शुरुआत करके ऐसा डेली 1 to 2 ड्रॉप्स एज पर एज ऐसा देना जरूरी है। और सर्वर्ण प्राशन के बजाय मैं जो सूक्ष्म औषधि बनाता हूँ, उसमें मेरा उसमें एक हम लोग बोलेंगे कि ट्रम्प कार्ड जो है वो कुमार कल्याण रस, उसका मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। और उसमें कुमार कल्याण रस भी कि जो पाउडर फॉर्म में लैक्टोज में जो ट्राइच्यूरेट होता है, वो लिटरली 2 दिन के बच्चे से लेकर के आगे करीबन एक 10-12 साल के बच्चे तक दे चुका हूँ, और उसके भी रिजल्ट्स उतने ही अच्छे हैं। मतलब उसमें हम लोग जब भी ट्राइच्यूरेट करेंगे तो तभी ये जो कुछ चीज़ें आती है मेरे ख्याल से कि स्वर्ण कितना प्योर है, उसमें क्या मिलाना है, और उसको फॉर्मुलेशन करते समय उसके तरफ जो ध्यान देना पड़ता है कि जो भी रसायन द्रव्य है या जो भी धी द्रुति स्मृति बढ़ाने वाले जो द्रव्य है, उनकी भी प्यूरिटी और उनकी भी मात्रा अगर इधर उधर हो जाएगी तो उससे भी साइड इफेक्ट्स होते हुए ऐसा मैंने 1-2 बच्चों में देखा है। तो इसके लिए स्वर्ण प्राशन से भी मैं कुमार कल्याण रस ज्यादा प्रीफर करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू राजन जी। we have आज हमारे पास काफी समय है, so we can extend our discussion. अग्निहोत्री जी की एक सवाल है जी, I don't know, it is for everybody. Should it be or can it be given to the child on repeated manner? How frequently do you prescribe? शायद अग्निहोत्री जी can ask this question better. अग्निहोत्री जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपके सबसे पहले सवाल तो मैं जानना चाहूंगा, अगर हमारे आज के स्पीकर्स का प्रेजेंटेशन हो गया है तो then we can use the time, otherwise they are our respected guests, so they should be given chance. Sure, sir. So if Sure, our sir. speakers They have completed. Okay, thank you. It's a relaxation. My first sentence is this: if good studies were done and the great teachers were there, the person or this practitioner speaks like Sunita Jaiswal. I really like to appreciate how easy going she presented that. My question is that because when I was studying up to 78 or 80s, there was no such type of concept of giving Swarnaprashan karma. Of course, when the Department of Ballok separated on the expansion program of Ayurvedic studies, we established here Dr. Geeti Verma, Dr. Renu, are there. So they propagated this thing, and now it is came in a limelight. Now it is so regular feature that we have got flexes and full year push nakshatra dates along with the presentation. So we are making all awareness. We are putting lot of pamphlets to the nearby medical stores. Persons, those who reach there to purchase medicine, they get full information and they come. But as far as the camp system is concerned or the crowd is concerned, I think the basic purity and pavitrata, probably it is hampered somewhere. My basic question was
that whether this type of Swarnaprashan is or maybe given to that kid who has already taken one dose on the onset of the other month's Pushya Nakshatra. This is my first question. Yes. Please. Can it be repeated? Is this? If a kid of any age, maybe 1 month, 2 months, or 5 months, or 1 year, is given Swarnaprashan on one day on Pushya Nakshatra, will it be called on other Pushya Nakshatra day, may it be 1 month after or 6 months after or whatsoever, as per the vaccination schedule of modern medicine, first dose, second dose, third dose, booster dose, like that? I don't know who wants to take this question. Shayad Sumita ji, whoever is having a proper answer, he or she is enlighten me. Sumita ji, or whatever in your practice you are practicing, you all the speakers are practicing and going through this Swarnaprashan karma. So would you please like to enlighten me that the person or the baby who has been given once Annaprashan be called or allowed to go for the second dose or not? Who wants to take this? Sumita ji, please, and then Jyoti ji. Yes, sir. तो मैंने जब इसके लिए पढ़ा तो मैंने देखा काश्यप संहिता में भी लिखा है और दूसरी संहिता में भी कि आपको एक के बाद एक कंटिन्यू 6 मंथ्स के लिए इसको लेना कंपलसरी है. बट आज का जो दिन है, अभी जो चल रहा है, तो लोग मिस कर जाते हैं. मैंने देखा है मिस कर जाते हैं. देन बट मैं अलाउ करती हूँ कि नहीं, आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी तो प्रज्ञा पराग तो होना ही है ना सर. अभी तो हम लोग कलयुग में हैं. सुनिए, मेरा तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम एक वैक्सीनेशन शेड्यूल कार्ड बना लेते हैं, तो हमने फर्स्ट डीपीडी लगवा ली, तो उन्होंने तुरंत नेक्स्ट डेट दे दी हमको. अगला कॉलम होता है यू आर सपोज्ड टू कम और ब्रिंग योर चाइल्ड ऑन दिस डेट. If at all 1 day or 2 days plus minus, no problem. But it is a hard lining of Pushya Nakshatra. You are very clear that Pushya Nakshatra should be considered on that day when it is coming in Udyatithi. I mean, Nakshatra is different, Tithi is Nakshatra, but the presence of our solar sun is there. This is one thing very clearly. What we are doing in our previous stage or in our generations forefathers level, when a child is born, after making all clearance on the tongue, they are always ready to bring best quality honey from anywhere, and with the help of the silver spoon, because gold is not available, with the help of the silver spoon, and if it is not, then the pious finger, this ring finger, by this finger, nails should be very clear, it should not be cut, a formation of Om with the help of the tongue, it is done. It was in practice in way back years together. This was simple. You can say in a form of karma. But now it has become a medical approach, Ayurvedic medical approach. So our fundamentals like the combination, permutation, these things are to be taken in a practice. So as your practice, what is your assessment? Whether you call your once given this Swarnaprashan kid to on any other day or repeated day, say 3 months, 6 months, 1 year or not? What is indicated? Yes, sir. We can give any time. No harm. It was the same person. Always, the same child. Yes, same child we give. Okay, and okay. It doesn't. It is always helpful. One question which was read by Dr. our Ved Patankar ji, and you people are making all things very clear. But one thing is very important for the assessment of the Agni of that individual who is going to be benefited. Yes, we do this during our what is the state of Agni? So one thing is very important. Mothers are always crazy to feed this our kid, their kid, very naturally. It should be. It is out of mamta. But they are supposed to pet the burping system. If the burping system is not observed, the milk taken will be out. So in that way, we are failed to assess the Agni of that kid. Exactly. Timekeeping is a must. Quantity is must to be feed from both the best simultaneously. And then what is the status of potty? What is the status of the output? Sometimes due to cesarean section,
kid used to inhale the meconium. So the status of meconium, it should not be misled that whether it is his digestion is okay or not. So you are pediatricians, you are practitioners, you are Rashastra Visheshagya, but as far as the clinic is concerned, it's a bhed chal. 200 बच्चे आ गए, आप किसका अग्नि करोगे, किसकी मेटाबॉलिज्म देखोगे, किसका उसकी पॉटी के बारे में उसकी मम्मी बताएंगी, भाई आगे अभी देखो लड़ाई हो जाएगी, मेरे बच्चों को नहीं मिला. So academic is very important. Our point is this. Regarding this, I want to share my experience that as on institutional basis, proper care is taken that every Pushya Nakshatra, the baby should be administered with the Swarna Bhasma, that is Swarnaprashan. And prior to the Pushya Nakshatra, the intimation go to the parents so that they do not forget the date and they bring their child to the institute and they will be administered with the dose accordingly. Okay. Now my very important question is very open to all of you. Our first presenter was Dr. Jyoti Lakhani. I would not like to deny from any of the aspects you all put forward. Fact is this, that you have never noticed or informed us any of the demerit of this karma. It is really our fortune that even the lady told that Sunita told that a person who was having a juvenile asthma, she also got the success over it. But the concept of taking the equal quantity of Suddha Sharpi along with Madhu is one thing which comes under the Virudh Ahar. Okay. But the concept which you touched as a person of preventive medicine, what I found that in vitro, when we are making this equal quantity of Madhu and this ghee, making in a view that it may be having, it will be develop some toxicity, which may ultimately lead to the poisonous. But since the typhoid vaccine, COVID vaccine, or any vaccine, it is the smallest dose of that virus itself, the bacteria itself, which makes a form of vaccine. So your concept, if it is not been held by other speakers and learners, but it has got some vitality. If it is done, but it is a very precautious work that it should be given in such a little quantity that in any way it should not be harmed, because the kids are very important. Equal quantity should be very given important. And very small The life of kids are very important, and that too in present era, persons are going only for 1 or 2. Because in BHU, we did a topic over the albino rats by feeding them equal quantity of madhu and this ghee. Our Dr. Kamal Kumar Mishra was there. He took 6 albino rats. The topic was given for the MD course. And we assessed at so many levels with the parameters that loss of weight, fall of hair, and ultimately we went to the germinalizing layer, whether the spermatogenesis is happening or not. So ultimately, the reality is this, that 1 out of 10 rat died. So it's a very risky work, whether you are putting, so for smooth running, it is better to be in the unequal quantity of combination. But in principles, you touch the real sense of a vaccine, because it has got so many types: killed vaccines, live vaccines, attenuated vaccines, polyvalent vaccines. Your concept is being judged by by me as a preventive medicine person very, very carefully. But it should not lead to any of the loss of the kid in any way. Even a mother will ask under doctor consultation, it should be given in very small quantity. But it's a very risky factor. A person, even sometimes you see polio vaccines or other vaccine, TPT, kids used to develop so many effects, symptoms, and for that we have to go to give for Mazorel and other things, even glucose and all that. So your presentations were really good. Our queries were there, and over to Dr. Pawan Sharma and Dr. Professor Madan sir. Thank you. Sir, I would like to add add 2 things in this, sir. As per my observation, because yesterday we had Dr. Naresh Garg,
Dr. Naresh Garg was opposing Pushya Nakshatra. He was telling when a medicine can have miraculous effect on Pushya Nakshatra, why not on other day? He is from Rajasthan and he is practicing Swarnaprashan regularly without consideration of Pushya Nakshatra. Number one. Every nakshatra has got its own importance. It is Right. not like that. No. Yes. Number one. Number second. When government can say, "Do boond zindagi ki," every time. So why can't we say that every month has to be taken? After 30 days has to be taken. Maybe Pushya Nakshatra or not. I'm not debating on that. I'm sorry, because these are the experts. But after every 30 days, up to certain age limit, daily monthly Swarnaprashan should be there. Now one question. Suppose somebody is having affordability or affordable capacity to afford. Why can't in mentally retarded or in weak children, why can't daily or why can't weekly once? It is my question. Why can't weekly once in weak children, weak memory children, Down syndrome, mentally retardation? Why can't we give that? Number one. Number second, Agni question. How can we measure Agni in 200 children's camp? Now it is a fashion of Swarnaprashan camps. So it is very difficult and quite impossible to analyze the Agni of a child during that camp, because at that time a long queue is there, and in that queue everybody has to get Swarnaprashan. This is my humble request. Pawan ji, I think Sir. Sumita ji has raised a hand. Sumita ji, namaskar. आपकी तरफ से सुने जी. जी नमस्ते सर. बोल रहे हैं सर, हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर राजन सर से. उन्होंने कुछ समय पहले बोला कुमार कल्याण रस के बारे में. हाँ जी. तो अभी सर भी बोल रहे थे, पवन सर भी बोल रहे थे कि व्हाई कांट वी यूज दिस डेली ऑन डेली बेसिस. तो महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह ट्रेडिशन है इसको रोज देने का. मैंने सुना है कई वैद्यों से इसके बारे में कि वो रोज यूज करते हैं. तो मैं चाह रही थी मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको रोज स्टार्ट करने का. मैं अभी तक तो सिर्फ पुष्य नक्षत्र पे ही इसको एडमिनिस्टर करती हूँ अपने बच्चों में. तो लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको डेली बेसिस पे स्टार्ट किया जाए. तो इसमें सर ने बोला एक बात कि कुमार कल्याण रस को यूज करने का. तो मैं चाहूंगी सर से पूछना कि कुमार कल्याण रस को किस तरह से और कितने डोजेज में वो यूज कर रहे हैं, और क्या कोई पार्टिकुलर वे है उसको रोज कुमार कल्याण कितने दिन तक देना है, ऐसे कर, क्योंकि उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इसके बारे में. तो राजन, थैंक यू सुमिता जी. yes. राजन जी. हाँ राजन जी नमस्कार. ओके. जैसा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 99% वैद्य जो है वो स्वर्णप्राशन पुष्य नक्षत्र को देने के बाद वो जो बॉटल रहती है वो जो पेशेंट है या बच्चा है उनके माँ बाप के हाथ में दे देता है, और एज पर एज मतलब 1 साल तक 1 बूंद डेली, 2 साल के 1 साल के बाद में 2 बूंद, ऐसा करके वो 5 साल तक 5 बूंद तक लेके जाते हैं. तो ये डेली देना रहता है. महाराष्ट्र में 99% वैद्यों की ऐसी परंपरा है. जो दूसरा सवाल था कि कुमार कल्याण रस, तो कुमार कल्याण रस या जो भी कोई सुवर्ण कल्प है उसकी कॉस्ट आजकल बहुत बढ़ने लगी है. तो इसके लिए उसका नैनो मेडिसिन या सूक्ष्म औषधि बना करके मैं देता हूँ, और ये गए 15 साल से दे रहा हूँ. तो उसमें सूक्ष्म औषधि बनाने का जो तरीका है, अगर 1 ग्राम हम लोग कुमार कल्याण रस लेंगे तो उसमें 1 ग्राम जो मिल्क लैक्टोज है या शुगर ऑफ मिल्क वो डाल करके उसको ट्राइचुरेट किया जाता है 1000 टाइम्स, और उसके बाद में उसमें 9 टाइम्स फिर से लैक्टोज डाल करके उसको फिर 1000 टाइम्स ट्राइचुरेट किया जाता है. ऐसा मैं 2x तक बना करके देता हूँ, और उसका जो डोसेज है वो ऑन डेली बेसिस एज पर हम लोग उसमें मतलब मैं जो देखता हूँ कि वो जो व्याधि का जो चिरकारित्व है और रुग्ण और व्याधि का बल दोनों देख करके 1 ग्राम ट्वाइस 2 टाइम्स ऐसा दे करके मैं बच्चों में जो भी बच्चों में बार बार इन्फेक्शन होता है
उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि उनके घर में जब भी देखता हूँ तभी एंटीबायोटिक्स की एक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई रहती है, हायर 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 एंटीबायोटिक्स, तो उनका वो सब छूट जाता है। और इसके लिए मैंने जैसा कहा कि कुमार कल्याण रस मैंने 2 दिन के बच्चे को भी दिया है, कि जिनको फीडिंग लेने के बाद इमीडिएट वॉमिटिंग वगैरह हो जाता है, उसमें भी उसका मतलब वो एक मल्टीपर्पज मेडिसिन है, ऐसा मेरा उसका एक्सपीरियंस है, और वो गए 15 साल में बहुत यूज कर चुका हूँ। सुमिता जी, डज इट सेटिस्फाई योर आपके जो क्वेश्चन? यस सर, मैं पवन सर से कहूंगी मुझे सर का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, मैं इनसे पर्सनली इसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात करूंगी। चलो जी, जरूर जरूर जरूर। और सेकंड क्वेश्चन एक मेरा है, सर से ही है, राजन सर से ही है। राजन सर ने बोला कि अग्नि एक्सेस करने के टाइम पे आप लार को भी, बच्चों की जो लार स्राव हो रहा है उसको भी कंसीडर करें। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बच्चों में नाइट स्वेटिंग बहुत अधिक होती है, सोने के बाद स्वेटिंग आती है काफी अधिक। मेरा खुद का बेटा है, उसको भी नाइट स्वेट में सारी रात नहीं, जब वो डीप स्लीप में जाता है देन उसको बहुत अधिक स्वेटिंग आती है। तो क्या इससे अग्नि का कोई कोरिलेशन है लगभग आधे घंटे तक? हाँ जरूर जरूर हो सकता है, मतलब मेरे ख्याल से उसको देखा नहीं हूँ, पर उसकी प्रकृति जो वो पित्त की हो सकती है, इसके लिए ये सब होती है। हाँ यस, ये मेरा एक्सपीरियंस विकृति है, वो पित्त प्रकृति का ही है। हाँ यस यस, पर वो ये विकृति नहीं कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। पर उसको वही मैं जानना चाहती हूँ। एसी में सुलाना या पंखे के नीचे सुलाना, ये उसके लिए सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। नहीं। हाँ यस, थैंक यू। चलो सुमिता जी, आई होप ये जी, हाँ जी, प्लीज 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 कंटिन्यू। आप मैंने ये जी मैं अपने बट ये प्रॉब्लम मैंने कई बच्चों में देखा है। कई पेशेंट्स आके बताते हैं कि उनको नाइट स्वेटिंग आती है उनके बच्चों में, और अगर ये बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, मैं देखती हूँ उनको कोल्ड एंड कफ अफेक्ट करने का, क्योंकि वो रात को सोते हैं, उनको स्वेटिंग आती है, उनके कपड़े गीले रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कफ बैठ जाता है। तो मैंने वो बहुत बड़ा रीजन देखा है। तो इसको कम करने का कोई उपाय क्या स्वर्णप्राशन के थ्रू है या कुछ और? ये मैं, क्योंकि आपने वो टच किया तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया। तो जो है ना, स्वर्णप्राशन डेली शुरू करो ना, ऑन डेली बेसिस, जैसे महाराष्ट्र में दिया जाता है। हाँ, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा जरूर। हाँ, थैंक यू राजन जी। डॉक्टर सुनीता, ऐसे बच्चों को आप ना प्रवाल और मुक्ता की चीज भी दे सकते हैं, जो पित्त को शमन करेगा और उसको कैल्शियम इनपुट भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा। वैसे फीडिंग के टाइम पर तो बच्चे अक्सर पूरा माथा गीला हो जाता है, उसमें उनको एक्सर्शन होता है। सकिंग के टाइम पर तो बच्चों को पसीना आ ही जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर इनके केस में कैल्शियम ब्रिज करने के लिए आप प्रवाल और मुक्ता टाइप की कोई चीज दे सकते हैं छोटी मात्रा में, एंड दैट विल डू लाइक एनीथिंग। वो भी सूक्ष्म बना करके दे सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू अग्निहोत्री जी, थैंक यू। थैंक यू। सुमिता जी, टेलीफोन नंबर इज ऑन द चैट बॉक्स राजन जी का, अभी भेज दूं आपको। हरीश जी नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सभी आचार्यों को प्रणाम। तो आपका हाँ जी जी, तो एक तो सभी को मैंने सुना, पहले तो मुझे स्वर्णप्राशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं तो सीखना चाहता था आज कि स्वर्णप्राशन को कैसे इस्तेमाल करें, क्या चीज है ये। एक तो स्वर्ण भस्म जो है, इसको बनाने की विधि के बारे में थोड़ा सा सभी आचार्य इस पर विचार करें कि स्वर्ण भस्म, क्योंकि एक स्वर्ण भस्म मैंने इंडिया से मंगवाई थी। हालांकि यहाँ पर कनाडा में हम लोग मेटल्स को, हैवी मेटल्स को यूज नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली आर्सेनिक, लेड और मरकरी। स्वर्ण तो हैवी मेटल में नहीं आता है। तो जो आर्सेनिक, उसमें उसमें आर्सेनिक कंपोजिशन में निकला, तो बाद में मैंने बुक्स को देखा कि कई फार्मूलाज में स्वर्ण भस्म को बनाने के लिए मनशिल का इस्तेमाल होता है। जो मनशिल जो है आर्सेनिक होता है। तो क्या हम इसका विचार करते हैं कि स्वर्ण भस्म किस विधि से बनी है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, बहुत देर पहले, कोई आज से
25-30 साल पहले मैं एक बार BHU में गया, 30 साल की बात होगी शायद। वहां डॉक्टर दामोदर जोशी थे, रस शास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने रस शास्त्र विभाग में देखा, वहां उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फर्नेस रखी हुई थी, रिसर्च के कार्य से रखी थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, मैं कहा जी आप जो भस्म बनाते हैं फर्नेस में बनाते हैं? वो कहने लगे हाँ, कुछ भस्में हम फर्नेस में बनाते हैं। मैंने कहा जी वो क्यों, जो आयुर्वेदिक तरीका है उससे क्यों नहीं? कहते हमने रिसर्च करके देखा है, जो स्वर्ण भस्म है ये उपलों पे बन ही नहीं सकती है। जो ट्रेडिशनल मेथड है स्वर्ण, जो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेथड है स्वर्ण भस्म, पर्टिकुलरली जो उपलों का यूज करने का, उन्होंने बताया कि जो उपले होते हैं इसका टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर 800 डिग्री तक ही रहता है, जबकि स्वर्ण भस्म को बनाने के लिए 1500 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये बात तो कभी पहले आई नहीं और सदियों से भस्में बनती आ रही हैं। तो वो कहने लगे कि जो स्वर्ण भस्म आयुर्वेद के जो सक्सेसफुल स्वर्ण भस्म गिनी जाती है, वो स्वर्ण भस्म जो स्वर्ण सिद्ध मकरध्वज जो बनता है उस विधि से अगर बनाए तो वो भस्म जो है वो काफी अच्छी बनती है। अदरवाइज जो स्वर्ण भस्म हम उपलों से बनाते हैं वो भस्म बन ही नहीं पाती है। तो इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा, डॉक्टर पवन जी राजशास्त्र के हैं तो ये अपने थोड़े विचार दें कि स्वर्ण भस्म जो है क्या ट्रेडिशनल मेथड से बनती है जो वो ठीक है, या जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी से बनती है वो ठीक है? क्योंकि सभी स्पीकर्स को सुना तो उसमें स्वर्ण भस्म जो है वो इसका एक्टिव मतलब मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने अभी अभी इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देखने की कोशिश की स्वर्ण प्राशन की, तो उसमें स्वर्ण भस्म, शंख पुष्पी, यष्टि मधु, गुडुचि, अश्वगंधा, वाच ब्रह्मी और मधु मधु एंड घी, ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्ण भस्म एक की इंग्रेडिएंट है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए और उसी के ऊपर आधार करेगा कि हमें इसको कितना देना चाहिए, इसकी डेली डोज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। अगर ये आर्सेनिक से बनी हुई है स्वर्ण भस्म और अगर उसमें आर्सेनिक के कंटेंट है तो वो तो एक हैवी मेटल है, उसकी तो अकोमुलेशन होती चली जाएगी, छोटे बच्चों में उसकी डोज बढ़ जाएगी। ये सारी चीजों पे विचार करना पड़ेगा। और स्वर्ण भस्म जो है कई बार देखा गया है कि कुछ स्वर्ण योग से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कई जगह रिपोर्ट हुई है, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू। हरीश जी, शायद पवन जी की तरफ से कुछ होगा। पवन जी है हमारे। आई वुड लाइक टू ऐड हियर सर। हाँ जी। स्वर्ण भस्म तैले तकरे गवा मूत्रे रार नाले कुलत्तजे, वो वाली बातें सब शास्त्र में है। स्वर्ण के वर्क बना के जनरली पारे में एमलगम बना के और एमलगम को सब्लिमेट करके स्वर्ण भस्म का शुद्ध रूप हम लोगों को मिलता है। उसके बाद आई रस तरंगिणी। रस तरंगिणी आई 1950s की बुक है। उस 1950s ने एक नया दरवाजा खोला कि आप गोल्ड को एक्वारेजिया में घोल दो और एक्वारेजिया में घोल के जो नैनो पार्टिकल्स गोल्ड के बनेंगे आफ्टर सब्लिमेशन ऑफ एक्वारेजिया, दोज विल बी गोल्ड भस्म। तो आज की गोल्ड भस्म जो है वो कपोत पुट की बात और वो सब पुट की बात आज मफल फर्नेस में आ गई है। नंबर 1, मनशिला वाली से जनरली आजकल बनना बंद हो गया है, क्योंकि वही प्रॉब्लम जो हरीश जी बोल रहे थे, कहीं लेड पकड़ा जाता था, कहीं आर्सेनिक पकड़ा जाता था, तो वो वाली चीजें आजकल बंद हो गई हैं। फिर भी जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है वो 2 ही प्रोसेस से आ रहा है, एमलगमेशन होके मकरध्वज बनके, जब एमलगम बनके और सल्फर के साथ उसको हम बना के और मकरध्वज बनाएंगे तो मकरध्वज ऊपर चिपक जाता है और जो नीचे बचता है उसको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्वर्ण भस्म कहते हैं। उनसे भी आगे आ जाएं तो हम एक्वारेजिया में घोल के उसको अलग करके सॉल्वेंट को
और जो फाइन पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स बचते हैं वो भी स्वर्ण भस्म कहलाए जाते हैं। फर्क इतना है कि इन चीजों में क्वांटिटी बढ़ती नहीं है। आजकल के कुछ मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए शास्त्रीय फॉर्मुलेशंस को लेके और उसमें जो भी कुछ अलग पदार्थ हैं, क्योंकि उसका रेफरेंस लिखा रहता है। ये बात आप लोगों की, हरीश जी की बिल्कुल सही है कि स्वर्ण प्राशन के लिए पर्टिकुलरली एक कोई मैन्युफैक्चरिंग रेफरेंस अपना क्लियर होना चाहिए कि हम वही स्वर्ण भस्म यूज करेंगे जो इस शास्त्र के हिसाब से बनी हुई होगी, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है। तो हम ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर ये, क्योंकि स्वर्ण भस्म अलग अलग तरीकों से बनाने का विधान है। और ड्रग कंट्रोल के कानून में लिखा है कि आपके पास जो 54 बुक्स है शेड्यूल 1 की अप्रूव्ड, उसमें यदि लिखा है तो वो आंख बंद करके मानेगा कि हाँ ये स्वर्ण भस्म है। अब ये बनाने वाले के ऊपर है, यदि वो ज्यादा कॉमर्शियल माइंड का होगा तो वो ऐसा देखेगा कि उसमें भावनाएं ज्यादा हो, उसमें दूसरी चीजें ज्यादा हो, गोल्ड का परसेंटेज वही वो सूक्ष्म औषधि की तरह कम होता जाए। उसका उद्देश्य सूक्ष्म बनाने के लिए नहीं, उसका उद्देश्य कॉस्टिंग कमाने के लिए होगा। उद्देश्य अलग था, दोनों का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर अलग है। यदि हम नैनो बना रहे हैं पेशेंट को कम खर्चे में लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन जहां ये मैन्युफैक्चरर गड़बड़ करते हैं कि उसमें कुछ भी डाल के उसका बल्क बढ़ा दिया, मालूम पड़ा कि हमने 10 ग्राम सोना लिया, उसकी 200 ग्राम भस्म मिल गई हमको, तो मैन्युफैक्चरर इज ग्लैड। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं जनरली, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हरीश जी का, और ये सब स्वर्ण प्राशन वालों को कंसीडर करना चाहिए कि आप लोग कौन सा स्वर्ण भस्म यूज करते हैं और वो कौन से प्रिपरेशन के प्रोसेस के हिसाब से बना है। क्या हम अनजाने में लेड या आर्सेनिक बच्चों को तो नहीं दे रहे? क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारी सूक्ष्म नैनो मेडिसिन काम करेगी, ऐसे ये आर्सेनिक और आपके लेड नैनो पॉइजन के रूप में भी तो काम करेंगे। राजन सर कुछ बोलना चाहते? नहीं, राजन जी ताली बजा रहा कि बहुत बढ़िया नहीं, पॉइंट ये है। एकदम सही पॉइंट है। तो इसके लिए उसमें जो हमारा जो तरीका है, मतलब मैं जो यूज करता हूँ, तो उसमें अगर मर्दनम गुणवर्धनम किया जाए इसमें लैक्टोज में, तो उसका साइड इफेक्ट बहुत सारा कम हो जाता है। ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 100% कम हो जाता है, पर उसके वजह से वो एक है। पर हरीश जी का भी सवाल एकदम सही था, और उसके लिए पवन जी का भी जवाब एकदम ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट था एकदम। पवन जी, हरीश जी, थैंक यू फॉर टचिंग ऑन दिस बहुत सेंसिटिव पॉइंट जो आपने जो बताया। एंड आई थिंक दिस इज अ ओपन क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू सी, हमारे साथ है शायद नवीन जी है हमारे साथ। नवीन जी नमस्कार जी, कुछ आपकी तरफ से कुछ हो तो प्लीज गाइड अस। थैंक यू मच मदन जी। मदन जी, मेरा तो कोई इसमें स्वर्ण प्राशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सन 95 में इंडिया छोड़ दिया, तो उसके बाद विदेश में तो कोई स्वर्ण प्राशन का कोई वो स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने जरूर अपने एजुकेशन में यहाँ पे षोडश संस्कार का एक मॉडल रखा जो मैं पढ़ाता था। उसमें मतलब हमारे यहाँ जैसे गर्भाधान संस्कार से शुरू होके अंत्येष्टि संस्कार का हमारे मतलब मान्यता के रूप में, चूंकि सारी मान्यता जो हिंदू धर्म की मान्यता है वो सारी आयुर्वेद की मान्यताएं हैं, ऐसा सोच के कि वो 16 संस्कारों में से संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। ये 7वां संस्कार है निष्क्रमण संस्कार के बाद। तो अन्नप्राशन संस्कार का मैं इसको पूर्व संस्कार ऑफ अन्नप्राशन संस्कार, ऐसा इसको कह सकते हैं। क्योंकि स्वर्ण प्राशन संस्कार का ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा उल्लेख स्वर्ण प्राशन का के बारे में शास्त्र में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव है काश्यप संहिता में, लेकिन स्वर्ण प्राशन एक संस्कार है ऐसा मुझे तो शायद देखने में नहीं मिला। तो उसको अन्नप्राशन संस्कार से पहले का संस्कार ये है। तो उसमें मतलब मेरे को कोई ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं इसका, मुझे नहीं है एक्सपीरियंस। पवन जी, नवीन जी एक मिनट जी, पवन जी की तरफ हमारे यहाँ जो स्वर्ण प्राशन संस्कार था ना सर, जब बच्चा पैदा होता था
जिस समय तुरंत नर्स के हाथ में आया, उसने साफ किया, और उस समय इतनी शुद्धता भी नहीं, जो अंगूठी होती थी या कोई गोल्ड का, प्योर गोल्ड का 24 कैरेट का कोई हार होता था, उसको शहद और मधु के साथ घिस के तुरंत चटाने का विधान था। एंड दैट वाज आफ्टर अश्म संगठन। अश्म संगठन इन द सेंस, जब बच्चा पैदा होता है और वो रोता नहीं है तो उसके लंग्स खुलते नहीं है, तो पुराने जमाने में उसके कान के पास पत्थर बजाने का सिस्टम था, अश्म संगठन कहते थे। तो वो पहला विधान था कि जिससे बच्चा रोए और रोने के बाद उसके फेफड़े फूलें। और उसके बाद सेकंड संस्कार था स्वर्ण प्राशन, के उसकी बुद्धि बचपन से ही उसके गोल्ड पेट में डाल दिया जाता था कि बेटा अब एंटीबायोटिक के साथ दुनिया में जाओ। दिस इज माय पवन जी, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड। यहाँ आज हमारे पास है 3 गोल्ड मेडलिस्ट लोग। अब नवीन जी है गोल्ड मेडलिस्ट दिल्ली का, पवन जी है गोल्ड मेडलिस्ट जामनगर का, और हरीश जी है पंजाब यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। ये देखो कैसे भगवान ने कैसे लेके आया 3 गोल्ड मेडलिस्ट, और देखो चर्चा की क्वालिटी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नवीन जी, आपकी तरफ से कुछ और हो तो प्लीज। तो उसमें जैसे क्या कहते हैं, पवन जी ने बताया कि ऐसे एकदम से जात कर्म में संस्कार में हो गया ये, कि ऐसे चटाने का माध्यम था और ओम का साइन जीप पे लिखा जाता था। तो ये सब तो मतलब हमारी सब घरों में होता ही है। ये तो मतलब बिल्कुल घर की परंपरा थी, इसमें कोई आयुर्वेद चिकित्सक का रोल ही नहीं था। और इसमें मतलब और जहां तक रुलाने की बात आई, ये बड़ा अच्छा मेरे को पहली बार शब्द मिला। ये मैं इनसे दोबारा से पूछूंगा कि अगर चैट बॉक्स में लिख दें इस शब्द को, कि मैं इसको समझ नहीं पाया था जो इन्होंने आवाज के लिए बोला था ना कि कान में डाला जाता है। तो उसी विषय में क्योंकि हम विदेश में रहते हैं, तो यहाँ पे आयुर्वेद का पठन पाठन जो है वो भारत के तरीके से नहीं होता है। और उसमें क्या कहते हैं, बहुत अलग से एक्सपेक्ट आए थे, क्योंकि ज्यादातर जो हम लोगों के पास संपर्क में स्टूडेंट लोग आते हैं, पहली बात तो उनकी उम्र कोई 16-17 साल की नहीं होती जो हमारे संपर्क में आते हैं। तो मेरे कुछ, अगर मेरे स्टूडेंट की आपको एक उम्र बता दूं तो आप भी शायद हैरान होंगे। 87 ईयर ओल्ड के मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट चल रहे हैं। शाबाश। उनकी उम्र 87 है, तो इसलिए उनको स्टूडेंट कहना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एनीवे तो यहाँ पे लोग आयुर्वेद को बहुत ही दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। जब इन्होंने आवाज के लिए बोला, मैं इनसे पवन जी से पूछूंगा दोबारा से क्या शब्द इस्तेमाल किए, मुझे वो पवन जी दोबारा बताएंगे क्या 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 कहते हैं उसको, क्या आपने कहा अभी? पत्थर लेख पवन जी। हाँ, अश्म संगठन। अश्म माने पत्थर बजाना, उनको पत्थर बजाना। जैसे वो आपने ट्रेनों में सुना होगा, वो एक उंगलियों में पत्थर लेके बड़ी जोर की आवाज निकलती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आया के हाथ में वो पत्थर रहते थे। हाँ जी, आया के हाथ में वो पत्थर रहते थे गांव में, और कौन सी टेक्निक वो यूज करे, पत्थर बजा देती थी, आदमी रोने लगता। तो उससे पहले भी आ जाओ, थाली बजाने का सिस्टम जो था हमारे यहाँ पे। यस। और थाली में भी कौन सी तरफ की थाली बजाई जाएगी, लड़का हो तो कौन सी तरफ की थाली बजाएगी, और लड़की होगी तो कौन सी तरफ की थाली बजाएगी। पूरे गांव में पता लग जाता था थाली बजाने से कि लड़की हुई है कि लड़का हुआ है। तो उससे पहले आ जाते हैं। अभी उससे पहले आ जाते हैं। उससे पहले जो मैंने समझा, और बहुत ज्ञानी लोगों से बात हुई कि बच्चा रोता क्यों नहीं है और बच्चा रोता क्यों है। तो एक तो ये हुई फिजियोलॉजिकल बात, और जो पेडिट्रिशियंस भी कहते हैं कि भाई बच्चों को रुलाया जाता है ताकि लंग्स खुल जाएं। ये लॉजिक बात है, लॉजिकल है। और हम आज के युग में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पर टिके हुए हैं, तो जब लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो हम उसको बेवकूफ कह देंगे, उसको मिस्टेक कह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कुछ चीज का लॉजिक समझ में नहीं आता, उसका सीधा साधा मतलब ये है कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लॉजिक समझ नहीं आ रहा। उसके बारे में एक ऐसा कहना गया है पवन जी, मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं मुझे पता नहीं उम्र में, और मैं 61 वर्ष का हूं। और तो जब जो भी सम्मान के साथ मैं एक बात कह सकता हूं कि ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि बच्चा यूनिवर्स से एक प्रश्न करता है, वो इसलिए रोता है।
वो प्रश्न करता है क अहम, उसको संस्कृत में संधि करेंगे तो आएगा को हम। क होता है क अहम, मतलब कि मैं कौन हूं। तो बच्चा रोते रोते, उसको हम सोचते हैं कि वो रुदन है, वो रुदन नहीं है। वो प्रश्न पूछने का तरीका है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं पता। वो हिंदी पैदा नहीं हुआ, वो तेलुगु पैदा नहीं हुआ, वो डच इंग्लिश पैदा नहीं हुआ है बच्चा अभी। उसको वो तो पैदा होने के बाद उसको माँ सिखाएगी कौन सी लैंग्वेज है उसको। अभी तो उसको लैंग्वेज कुछ नहीं पता। तो उसका रोना जो है ना, वो उसके एक्सप्रेशन है, वो रोना नहीं है। दैट्स नॉट रुदन, दैट्स ए क्वेश्चन। The question child asks to the universe is ka aham, and then universe always reacts. Whenever you will ask a question to the universe, कभी भी आप ध्यान में, आप आंखें मूंझ करके बैठ जाएं, एक क्वेश्चन करें यूनिवर्स से, सुपर कॉन्शियसनेस से क्वेश्चन करें एक, तो आपको उसका उत्तर तुरंत मिलेगा। आपको गूगल भी बहुत देर में देगा। गूगल को भी आने में, वो आकाश से उतरते उतरते बहुत टाइम लग जाएगा गूगल को आने में, और यूनिवर्स उसको एक मतलब तरस रेणु के समय में दे देगा उसको आंसर। तो यूनिवर्स उसको आंसर देता है सोहम स अहम, कि तुम मेरे ही अंश हो। वो यूनिवर्स से पूछता है क हम, वो रोता नहीं है, वो पूछता है, और यूनिवर्स को रिप्लाई करती है स हम सोहम, तुम मेरे ही अंश हो। तो हम उसको मतलब एक प्रकार से रोने के रूप में ले लेते हैं। और दूसरा, रोने के बारे में एक चीज और मैंने उसको समझने की कोशिश की। बच्चा पहली बार महसूस करता है योनि मार्ग से आने के बाद, क्योंकि वो पहले तैर रहा होता है, वो पहले एक सागर में होता है, उसको सीमा नहीं पता, उसकी सीमा होती है सागर की। जब वो सागर में तैर रहा होता है, तो पहली बार उसको जब पैदा होता है, तो उसको डॉक्टर साहब थोड़ा सा आवाज आ रहा, पता नहीं कौन सी माइक्रोफोन देखूं जी, 1 मिनट। हो गया बिला। तो पहली बार, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, तो पहली बार उसको गुरुत्वाकर्षण का महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं एक आकाश में, एक आकाश गंगा में मैं तैर रहा था या तैर रही थी, और उसको बिल्कुल एकदम से ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको तो अट्रैक्ट करता है। तो उसको, बच्चे को लगता है कि मैं गिर रहा हूं। तो वो इस गिरने के उस सोच से वो रोना शुरू करता है। रोने के बारे में मुझे, रुदन के बारे में केवल 2 चीजें याद आती है, और तीसरी चीज से मेरा परिचय कराया आज पवन जी ने, तो बहुत अच्छा हुआ। और चौथा कोई और परिचय करा सके तो अध्यात्म की दृष्टिकोण से आयुर्वेद को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नवीन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया जी। प्लीज स्टे विद अस, क्योंकि शायद अग्निहोत्री जी की तरफ से कुछ है। नवीन जी आप बहुत दूर ले गए हैं, आप बहुत दूर ले गए हैं। जो आपने 2 शब्द को हम और सो हम, उसमें सिर्फ इतना सा एक कण में दे रहा हूं। जो पिछला जन्म शरीर पूर्ण हुआ और आत्मा जब तक दूसरे शरीर में या दूसरे घर में नहीं पहुंची, भटक रही थी, वो आ गई। अभी आंख भी बंद है, कान भी बंद है, और वो फ्लोट कर रहा है जो फीटस है। तो ये क्राई करने का मतलब ये हुआ कि मैंने तो आवागमन से मुक्ति मांगी थी, हम पुनः गर्भस्थ होके क्यों जीवन मुझे मिल रहा है? That is the question. That is the question. And that the same moment when he got a delivery, he asked this question, and spontaneously that mouth opens and the air goes to lungs, and he start living. Then sometimes he speaks or smiles on sleep, during sleep. That is what he still have the connection with the person who from where he is coming. So at that moment, that capital H says Soham. You need not to worry. Still this life will be completed, and again you will reach to me. This is what. नवीन जी अनम्यूट करके थोड़ा बताना जी, आपका आवाज कर दिया। हाँ, यही है तत्सत, हरिओम तत्सत, यही है। क्योंकि उसमें जो कहा गया ना, हरि ही ओम में, हरि ही ओम, तो एक ना उसको आधा बोला गया है, ही को आधा बोला गया है, हरि ओम नहीं बोला गया।
तो हम या विदेशियों को सबको बताते हैं ना, जब वो मंत्र बोलते हैं गुरु से सीख के आते हैं, तो मैं उसको बोला कि एक उसको आधा बोला गया हरि ही ओम, उसको अटकाना बोला गया है, तो टाइमलेस स्टेट है वो स्टेट है टाइमलेस, इसीलिए मंत्र है हरि ही ओम तत्सत, वो टाइमलेस स्टेट में चला जाएगा। जो अभी अग्निहोत्री जी ने कहा कि चाइल्ड ने कल्पना की कि मैं तो समय से दूर चला गया था, मैं तो अकाल में चला गया था, अब दोबारा से मेरे को काल में ले आए। जी 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 बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू। मैं एक वो सर डॉक्टर आर.एन. शर्मा जी हैं। हाँ, आर.एन. शर्मा जी है हमारे साथ। शर्मा जी नमस्कार डॉक्टर आर.एन. शर्मा जी। नमस्कार साहब। जय नमस्कार चरक जय नमस्कार, धन्वंतरी स्वागतम भगवान स्वागतम। की। जय चरक जय धन्वंतरी भगवान की। नमस्कार साहब, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से एक पूछना चाह रहा हूँ, हमारे आयुर्वेद में षष्ठे बुद्धि, छठे माह में बुद्धि उत्पन्न बताई है, छठे महीने में बुद्धि का उद्गम बताया है, तो अपन इसको गर्भिणी को दे सकते हैं क्या छठे महीने में? अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक जी। तो उसके लिए क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, मैं हाँ जी, एक्सपर्ट से पूछूंगा, जो स्वर्ण प्राशन के एक्सपर्ट है उनसे मैं आंसर लेना चाहूंगा। क्या इसका आंसर है? ज्योति जी, साइंतिका जी, विलास जी, कोई भी? दे सकते हैं क्या और हम दिया भी गर्भिणी गया से है। शुरू कर सकते हैं? एकदम सर, बहुत खूब क्वेश्चन। डेफिनेटली। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब तो ये, तो सबसे पहले तो पुष्य नक्षत्र तो उसमें है ही नहीं, छठे महीने में अगर है तो अगर उसमें ही शुरू किया जाए, अगर पुष्य नक्षत्र छठे महीने में कहीं आता है तो वो ज्यादा उत्तम रहेगा मेरे हिसाब से तो। बहुत अच्छा सर। जैसे जैसे अभी इंट्रायूटेराइन लाइफ में प्रेग्नेंट लेडीज को अब टेटवर्क देने लगे हैं ना, पहले आफ्टर डिलीवरी देते थे, तो वो सेम हो गया, वहीं से बचाते हैं। शायद नवीन जी की तरफ से कुछ है। नवीन जी अनम्यूट करो जी, अनम्यूट। ठीक है, अभी इसका पूरा मैं थोड़ा सा कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट उत्तर देने का मेरे को आदत नहीं है, मैं थोड़ा उत्तर को घुमा के देना चाहता हूँ। तो उत्तर भी थोड़ा घुमा के देंगे कि देखिए ऐसा है, षष्ठी बुद्धि का जो सुश्रुत संहिता में अंग प्रत्यंग शरीर में उसका पूरा व्याख्यान है। अभी मैंने जो संस्कार की बात की थी उसमें संस्कारों में दोबारा से आते हैं हम। संस्कारों में एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार, तो पहला संस्कार है, प्रथम संस्कार। अब गर्भाधान संस्कार में तो वो तो गर्भ का आधान हुआ, गर्भ की शैया बिछाई गई है। अब तो इसका मतलब ये हुआ, मुझे तो ऐसा लगता है कि पुरुष और स्त्री में गर्भ की सोचने से पहले ही स्वरप्राशन संस्कार किया जा सकता है। आदमी और औरत में ही गर्भ स्वरप्राशन संस्कार किया जा सकता है, ताकि जब वो गर्भाधान हो तो वो गर्भ ही स्वरप्राशन संस्कार के साथ हो, और फिर उसके बाद गर्भ के बाद फिर 6 महीने की गर्भिणी परिचर्या में ये स्वरप्राशन संस्कार उसकी माता के साथ किया जा सकता है। नहीं सर, ये ऐसा सही नहीं है, मेरे दृष्टि से ऐसा सही नहीं है, क्योंकि स्वर्ण है वो थोड़ा उष्ण होता है और उष्ण से रजय प्रवृत्ति होने का डर रहता है, तो वो बच्चा ही नहीं रह पाएगा। जब बच्चा ही नहीं रह पाएगा तो उस औषधि का लाभ ही नहीं मिल पाएगा। देखिए जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है। स्वर्ण सर इस विषय में मैं एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहूंगा, जिन्होंने किसी ने गर्भिणी को गोल्ड दिया है क्या? हाँ जी। मैं जब हम टू द पॉइंट बात करें और फोकस्ड बात करें तो शायद चर्चा में मजा आएगा, तो मैं एक्सपर्ट से बात करना चाहता हूँ। विलासचंद सरकार जी हैं, ज्योति लखानी है, कि क्या आपने छठवें महीने के बाद किसी को गोल्ड प्रिपरेशन दिया, और यदि दिया तो उसके क्या इफेक्ट हुए? यस सर, अंडर ऑब्जर्वेशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज हम दे सकते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट सबसे करूंगा, जो बोलेगा उसी का माइक खोलेगा। काइंडली बंद करते रहिए और चालू करते रहिए, अपने अपने माइक बंद कीजिए। जी बोलिए प्लीज।
जी सर, दिया गया है 6 मंथ के बाद आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज परिपक्व स्थिति, और उस स्थिति में आप औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। च्यवनप्राशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑलवेज एनहांसेस, और दे सकते हैं। हाँ, जैसे सर ने बोला कि उष्ण होता है, वो प्रकृति ऑफ द पेशेंट हमको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो उसकी बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति या पित्त विषेट है या दोषा बैलेंस नहीं है, तो हमको देख के देना है। अदरवाइज मैंने अभी तक कोई हार्म नहीं देखा है। Any other from speaker who has the experience, Bilash who ji, has prescribed gold medicine to 6 to 9 months, between 6 to 9 months? Any other? Sayantika ji, Sumita ji, Bilash ji, Sauri ji, कोई का एक्सपीरियंस है ऐसा? नहीं, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। शायद नहीं सर, पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं है, लेकिन स्वर्ण भस्म की अगर हम बात करें, जो उन्होंने बोला कि उष्ण होता है, लेकिन गर्भिणी को हम लोग अगर रिक्वायर्ड हो तो स्वर्ण देते हैं, स्मॉल अमाउंट में हो, वो गर्भिणी को कभी हार्म नहीं होता। तो अगर हम वो लॉजिक यहाँ पे लगाए तो हार्म जनरली नहीं होता है। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कंडीशंस देख ले कि वो उनका ऐसे फिजिकल कंडीशन कैसा है, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। शर्मा जी, शायद आपकी तरफ से सुनाई जी इसके बारे में। वैद्य शर्मा जी, आपसे। हेलो, आर एन शर्मा जी। नहीं जी, म्यूट, अनम्यूट कर दीजिए जी, अनम्यूट। आपका आवाज नहीं आ रहा शर्मा जी का। पवन जी, शर्मा जी का आवाज नहीं आ रहा। नहीं जी, शर्मा जी आपका आवाज नहीं आ रहा। शर्मा जी अनम्यूट कीजिए काइंडली। हेलो, हाँ जी, आ गया। चलो जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि छठे महीने के बाद दे सकते हैं अपन, तीसरे महीने से पहले दे नहीं सकते स्वर्ण को। अच्छा, छठे महीने के बाद दे सकते हैं, चलो। तीसरे महीने से पहले नहीं दे सकते, और उसके विशेष विधि में दे सकते हैं। उसको भी देने के लिए विशेष विधि, जैसे अपन है ना लिंग परिवर्तन करने के लिए देते हैं ना, जैसे कोई गर्भ में बच्ची है, उसको बच्चे के लिए देते हैं ना, पुंसवन संस्कार में जो देते हैं ना, पुंसवन संस्कार हाँ जी, करते हैं हाँ ना, जी। पुंसवन संस्कार, हाँ जी, तो उसमें अपन स्वर्णप्राशन के साथ में पुंसवन संस्कार कर सकते हैं, चलो। शर्मा जी, स्वर्णप्राशन के साथ। लेकिन उसमें पुंसवन की औषधियां साथ होनी चाहिए, लेकिन उसमें पुंसवन की औषधियां साथ होनी चाहिए। चलो जी, अंडरस्टूड। हाँ। If there is Madan ji, can I speak? Can I Doma ji, speak, Madan ji? if you can be, Doma ji, we would love to hear you, but please, if we can keep it brief, क्योंकि हमारे to the point, sir, to the point. Please, Okay. please, Doma ji, please. If Ushnavirya is used during pregnancy, there is every opportunity of getting reduced amniotic fluid, which should be sufficient till delivery. That is why we people serve Sindura Bhushanam along with Dhania decoction, coriander decoction regularly. Thank you very much. Doma ji, thank you for your suggestion. I think everybody is agreeing here कि शायद आर.एन. शर्मा जी की तरफ से कुछ है. I think he is agreeing कि आपकी जो suggestion, amniotic fluid का suggestion. जी सर, इन्होंने अच्छा बताया, अभी बोला ना जिन्होंने, बहुत अच्छा बोला है। हाँ जी, दोमा जी, हाँ जी। अभी जो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोला उन्होंने, क्योंकि ये अपन को धातु पुष्टता के लिए ही है। जैसे एक वैक्सीन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो अपन को स्वर्णप्राशन उसी कार्य के लिए तो यूज कर रहे हैं ना अपन, वैक्सीनेशन की तरह से। बिल्कुल जी, थैंक और यू। वैक्सीनेशन का जो रोल है उसमें, जैसे उन्होंने कहा था कि 2 से लोग आ जाएं, तो उसमें अपन क्या करें, उसमें उसकी अग्नि का परीक्षण कैसे करें, ये सब सब्जेक्ट आया था, विषय आया था। तो उसमें 200 के 1000 भी आ जाए तो भी अपन को उसके लिए एक बंदा बैठाना चाहिए, और उसका परीक्षण करने वाला दूसरा रहना चाहिए। फिर वो
चिकित्सक जो है उसको प्राशन की मात्रा फिक्स करे। थैंक तो यू। उसमें जरूरी है उसके जो वास्तविकता है ना, जब तक आप वास्तविकता में नहीं लोगे तो उसका पता ही नहीं है उसको कितनी मात्रा में जरूरत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो शायद मेरा विचार तो ये शायद अभी ये छठे महीने से शुरू हो जाना चाहिए और छठे में कुछ नक्षत्र को देखते हुए स्वर्ण का प्रयोग करते हुए रहना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर कोई पुंसवन संस्कार करता है तो उसको अपने विधि से करना चाहिए। पुंसवन संस्कार लीगली बैन है सर। मेरा आजकल जो रोग आ रहे हैं, कोरोना वगैरह जितने भी रोग आ रहे हैं उसमें इसका लाभ बहुत अच्छा मिल सकता है। और उस विधि से अगर इसका उपयोग करें, इसमें भी बदलते हुए अभी स्वर्ण हो गया, फिर है ना उसमें स्वर्ण स्पेशल हो गया, उसमें के अलग अलग से कैटेगरी बस इसका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। साइंतिका जी इससे सुनिए जी थोड़ा। साइंतिका जी। यस सर, मेरे कुछ क्वेरीज है एक्चुअली कि जो मैंने चैट बॉक्स में भी पूछा कि हम कौन सा हम ज्यादा बेनिफिशियल होता है लिक्विड फॉर्म में अगर हम बच्चों को दे या फिर टैबलेट फॉर्म में हम दे, जो माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होते हैं उनको मर्दन करके दे। तो बच्चों को कैसे देंगे जी टैबलेट? जी हाँ, नहीं माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होते हैं, उसको हम जब ट्राइचुरेट करते हैं ना हनी के साथ, अल्टीमेटली वो डिसॉल्व हो जाता है। तो विच वन इज मोर साइंटिफिकली available or is benefit for the children? I am not, हमारी तरफ से I think अग्निहोत्री जी might have some comment और राजन जी की तरफ से राजन सर ने बोला, लेकिन मैं थोड़ा अगर वो डिटेल में बोलेंगे तो मेरे को और अच्छा समझ में आएगा शायद। I don't know, अग्निहोत्री की तरफ। कॉलेज में हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं क्योंकि कॉलेज में पुष्य नक्षत्र और आगे भी ऐसा ड्रॉप फॉर्म में दिया जाता है और वो हमारे कॉलेज में ही बनाया जाता है। तो इसके लिए और जो सुवर्ण भस्म है, क्योंकि जो दूध पापेश्वर के जो अभी सर्वे सर्वा है जो पुराणिक, वो हमारे कॉलेज के ट्रस्टी भी है, तो इनसे इसके लिए उनसे ही सुवर्ण भस्म आता है। जो गोल्ड जो आजकल क्या बोलते हैं पत्ते के फॉर्म में जो मिलता है वही यूज होता है, भस्म के फॉर्म में नहीं। कि जैसा इन्होंने कहा, हरीश जी ने भी मेरे ख्याल से कहा, और जो भी कहा गया कि वो पत्ते के फॉर्म में आता है, भस्म के फॉर्म में नहीं। साइंटिका जी, आपके मन में कुछ there is a reason why you are asking this question, थोड़ा उसके बारे में बताना जी। आपके मन में कुछ है ये जो टैबलेट वाली, इसकी is it because storage, is it because shipment? No sir, actually actually in the market these two forms are available. Practically these two forms are practicing in the among the children, liquid and tablet form. Correct. हाँ, तो that's my personal query कि which one is more beneficial for children, मतलब जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्वर्ण भस्म एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, और जैसे हम एक जानते हैं, हाँ जी, जैसे हम जानते हैं कि सबलिंगुअली अगर टैबलेट हम लोग अच्छे से मर्दन करके देते हैं, और लीकिंग जो प्राशन है, प्राशन मतलब चाट के खाना, तो सबलिंगुअली उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। ऐसा भी है। अब लिक्विड का क्या है, वो ड्रॉप करके वो चला जाता है। तो दैट्स जस्ट माय क्वेरी कि विच वन इज, आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है बायोअवेलेबिलिटी की तरफ से, या फिर मेरे ख्याल से अगर क्लिनिक में यूज करना है तो जो टैबलेट फॉर्म वाला है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और अगर बड़ी मात्रा में ये करना है तो जो लेह या ड्रॉप्स वो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। अब शांतिका जी, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। इट्स एन ओपन क्वेश्चन। आपके जो सवाल, इट विल रिमेन ओपन फॉर अस। अब टाइम तो हो गया 8:30 बजे हिंदुस्तान में। अब शायद वी विल ट्राई अगले 15 मिनट में वी विल ट्राई एंड क्लोज दिस इवेंट। सो प्लीज, इफ वी हैव we focus our thoughts and come to a closure 15 मिनट में, then we will be doing well. शर्मा जी, शायद आपकी तरफ से कुछ है। शर्मा जी, आप कहाँ से जोड़ रहे हो? शर्मा जी, आप काइंडली म्यूट रखिए माइक को।
बार बार जयपुर से अनम्यूट साहब, मत जयपुर कीजिए। जयपुर जयपुर, शाबाश जी, शाबाश। जयपुर से साहब। मेरा डॉक्टर कहने जी का जी जी। मतलब है जो औषधि है स्वर्णप्राशन की, वो जिब्या के मध्य में टच होनी चाहिए। जिब्या का मध्य भाग है ना, उसमें टच होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो चाटने वाला हो, चलो, तो उसका गुण ज्यादा बढ़ेगा। शाबाश शाबाश। उसकी जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, किसी में बाएं में लगाते हैं, ऐसे किसी में अलग अलग लगाते हैं ना, जैसे उसका विधि होता है वैक्सीनेशन का, इसी उस पे लगेगा मांसपेशी पर, ऐसे ही जो जिब्या है उसके मध्य में उसका ड्रॉप जाना चाहिए। शाबाश। इसका कोई शास्त्र का रेफरेंस है शर्मा जी? है जी, इसका कोई हाँ शास्त्र बिल्कुल का है, रेफरेंस है? बिल्कुल है सर जी, बिल्कुल है इसका। इसका काइंडली जो शेयर उल्लेख है कीजिएगा, वो सबके बाद लिए में ओम बेनिफिशियल है। बनाते थे ना सर, ओम का उल्लेख आता है, ओम का बनाते थे अपने स्वर्ण के आधार से। इसकी शास्त्रों हाँ, में उसका रेफरेंस। उल्लेख आता है। अच्छा जी। शायद सुमिता जी आपकी तरफ से कुछ हो तो प्लीज, आपकी तरफ से यू हैव सम कमेंट सजेशन सुमिता जी की फील्ड एक्सपीरियंस, व्हाट इज देयर सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट या कुछ जैसे सर ने जैसे बोला, जी जी जी, सर ने जैसे बोला कि वो ओम बनाते थे, ये अभी भी प्रैक्टिस में है। मेरे मेरे घर पे हुआ है, मेरे खुद के साथ हुआ है। मेरे बेटे की जो हमारे में ट्रेडिशन है, छठवें दिन, बच्चे के जन्म के छठवें दिन बच्चे की मासी आती हैं, वो हनी, सोने की पेंसिल हुआ करती थी पहले, अभी तो अवेलेबल नहीं होती है, सोने की पतली सी एक पिन जैसी पेंसिल हुआ करती थी, उससे हनी लेकर उसके जीभ पर मध्य भाग में, सर सही बोल रहे हैं, ओम लिखा जाता था, जो मेरे बच्चे के साथ किया गया है। लेकिन उस टाइम पेंसिल्स तो हमारे पास है नहीं, बट सोने की कटोरी है छोटी सी, उसके अंदर मधु देके उससे उसको बच्चे को चटाया जाता है और ओम लिखा जाता है। तो ये पहले की ट्रेडिशन ये चल रही है। हमें उस टाइम जब ये मेरे साथ घटना हुआ था, मुझे स्वर्णप्राशन का कोई आइडिया उस वक्त उतनी डिटेल्स में नहीं था, बट जैसे जैसे समय बीता समझ में आया कि ये ट्रेडिशन जिसे कहते हैं ना तत्सम से तद्भव बन जाना, वो डिग्रेड होते होते ये कंडीशन अभी आई है कि अभी कैसे भी हो बट ओम मधु के साथ लिखा जाता है, भले ही स्वर्ण का यूज ना किया जा रहा हो। बिगड़ गया है ट्रेडिशन अभी तक, लेकिन एक्चुअली वो ट्रेडिशन था, स्वर्ण की पेंसिल यूज करते थे जिससे स्वर्ण का कुछ नैनो पार्टिकल जो है चला जाए। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट सर ने बोली, मैं एग्री करती हूँ इसके साथ में। और जहां तक वो जीभ के मध्य भाग में रहने का बात है, मुझे अभी रेफरेंस सही से याद नहीं आ रहा, बट हमारी जीभ की डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट रसों का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से होता है। तो मुझे लगता है कि मध्य भाग में जरूर उस रस का एब्जॉर्प्शन ज्यादा सही होता है, इस कारण से इसका रेफरेंस आया होगा। मुझे फिर से एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा कि वो मध्य भाग में कौन सा रस है, मुझे अगर कोई इसका क्लू दे दे अभी बीच में तो सही रहेगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं है। जैसे हमारे 6 रस है ना, मधुर अम्ल, तो वो कुछ है जो साइड में सही से एब्जॉर्ब होते हैं, मध्य भाग में सही एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ टिप ऑफ द टंग पे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऐसा कुछ रेफरेंस होगा जरूर, तो मैं इसको पढ़ूंगी और हो सके तो शेयर करूंगी वहां। थैंक यू सुमिता जी। शायद अग्निहोत्री जी के तरफ से कुछ, आई थिंक ही इज एग्रीइंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, सम इनोवेशंस। मेरी शर्मा जी, जयपुर में आपकी तो बन गया अब यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद है तो बन गया यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पे इसकी रिसर्च अगर थोड़ा करना हो, ये है अग्निहोत्री जी के सवाल की, it has become a science now. We want to do this in many places. अब सुमिता जी was saying कि नॉर्वे तक पहुंच गया। सुमिता जी उसके बारे में थोड़ा बताना जी। अब the question is, it is becoming a science from something that was just a practice. अब सवाल पूछने वाले होंगे इतने, so we must have something to give them कि आपके सवालों की उत्तर ये है। दिस इज, जैसे सुमिता जी ने बताया कि टेस्ट रिसेप्टर है टंग में, कुछ इस टाइप का कुछ अगर हो सकता है जयपुर नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद में, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस जी। अब सुमिता जी आपने जो कहा नॉर्वे तक पहुंच गया, ये थोड़ा बताना जी क्या है।
एक्चुअली जिनके पास गया है वो एनआरआईज हैं, मतलब इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ पे एज अ जॉब के कारण वहाँ रहते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं ना, कि एक से दूसरे ने सुना ऐसे करके, तो मेरे पेशेंट थे, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बोला, फिर उन लोगों ने भी मंगवाया और वो भी 6 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने उन बच्चों को ऑनलाइन ही जो देखा है और उसके हिसाब से असेसमेंट करके उनको फिर वो प्रोवाइड कराई है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से पहुंचा है, लोगों के बीच में जो डिस्कशंस होती हैं, एक दूसरे को बोलता है। और इस तरह की भी कंडीशंस हैं कि कुछ पेशेंट्स जो है अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, उनके पड़ोसी बोलते हैं कि हमें भी मैडम का नंबर दो, हमें भी लेना है, तो जस्ट स्वर्णप्राशन के लिए लोग आते हैं। तो इस तरह से है। तो वो लोग थैंक यू। ये चांदी का स्पून वाली बात जो अग्निहोत्री जी बताया, दिस इज अ यूरोपियन ट्रेडिशन ऑल्सो। यहाँ भी चलता है ये सिल्वर स्पून वाली चीज। सो दैट इज समथिंग, देयर इज समथिंग देयर हियर ऑल्सो। आई थिंक वी आर फास्ट कमिंग टू द क्लोजिंग टाइम। साइंतिका जी, अगर आपकी तरफ से कुछ हो। हमारे साथ है सुधाकर रेड्डी जी। सुधाकर रेड्डी जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुधाकर रेड्डी जी, आप, I think you were with us in that program, SDM Hassan में somebody is doing a very systematic study, जो उनका नाम, she was in our program and she was saying कुछ 5,000, some 5,000-6,000 cases documented studies that is going on in SDM Hassan. There are Kaumarabhucha Professor Dr. Reena Kulkarni is there. Reena Kulkarni. I think they are conducting in a large scale Swarnaprashan. In Karnataka, it has become very famous. There are KLE Belgaum, SDM Hassan, and in our JSS Ayurveda Medical College Hospital. We are practicing since 2008. So 2008, I think Hassan in early 2002 only they started. But in JSS Mysore, we are practicing 2008. And we had also conducted one small, because after introducing this 2008, in 2011, we had taken up a small research work. It was actually for a hostel children, 50 children we selected. We wanted to know that whether their IQ level increases or not. And at what the same age, time, sir? What age? Age group is 6 years to 10 years. 6 years to 10 years. And that children, local language, we prepared the questionnaire, and we before and after we check the IQ. And apart from IQ, again their common cold or pain abdomen, etc. But before administering this also, we have given Vidanga Churna. That is for deworming, not for modern medicine. Only Ayurveda deworming we are given for all the 50 children. And IQ test we conducted. And apart from that, we want to know that whether any toxicity after 6 months of administration daily of this Swarnaprashana with Vacha, Ishtimadu, Guduchi, these three, and Swarnabhasma. We prepared in a powder form and we administered with the ghee only, not honey, only ghee only. Ghee mixing, and they giving them, they should take this licking on the tongue before breakfast half an hour. And later, we also studied one more toxic effect, that is LFT and serum creatinine. These two, because we want to know that whether any side effects or adverse effect on the liver. For this purpose, before that on the ethical committee, we have IEC also we conducted. We have got the clearance of that one based on the one small animal study. Later, in clinical trial, we have done, but there was no any side effects, or that means there was no change in the LFT or serum creatinine after 6 months. But we find one more thing, that their hemoglobin level increased. Hemoglobin level, mean value is increased, and IQ level also increased. Even common cold and etc. decreased. But only one out of 50, 10 children they discontinued because the test was not properly, and also there was holidays between that one. But out of 40, we got an excellent result. Then onwards, we have started in a large scale in JSS Ayurveda Hospital, because we wanted to know that whether it is safe or not. Later, now till now,
nearly 1,000 children on Pushanakshatra Dina every month. On Pushanakshatra Dina, we are giving 1,000 people. But whereas in KLE, Belgaum and Hassan, more than 2,000 to 3,000 are they are practicing. It's a liquid form. Now we prepared. Previously it was a powder form. Now it is liquid form. There was a discussion, but liquid form, as per my knowledge goes, and we are preparing now GMP pharmacy. It is the best absorbable mode for children. For children, more than tablet or powder form, the absorption will be completely with the liquid form. In the liquid form, we are using the both ghee and honey and Swarnapasma. Apart from that, Ashwagandha also now we are adding Istimadu, Vacha and Guduchi. This preparation we are doing, sir. But excellent results are there. Excellent means we can say that children, parents are asking repeatedly, I want to get my children to Swarnaprashan when it will be there. So that is there. So there, most of the children, their appetite is increasing, number one, sir. Number two, the common cold or any cough and cold, etc. decreasing. And later, their playing capacity and also the physical activity is increasing. For small children, the parents wanted that only. My child now became very active after taking this form. And later, it may improve the immunity power, what we can call memory power and etc. That will be there, definitely. But they wanted that my child should be active. So that's what we find out, sir. And it's today's discussion, very nice discussion, because there are so many queries came and discussion was a healthy discussion. And R.N. Sharma sir, actually, see, we never expected that 6 months of the pregnancy period giving the Swarnaprashana. But as per my knowledge goes, sir, in all our Samhitas, in Garbhini Paricharya, nowhere mentioned the Swarnaprashana, Swarna administering the pregnant lady. It is never mentioned, only Kshira and Grita and rice. These are the three, and the other herbal medicines are there. Even during the Shashti, that's 6 months, when Meda is improving, Buddhi is increasing, also there is no reference of giving the Swarnaprashana, but practically some, as the madam told, that can be given. But in according to classics, there is no mentioning of any Swarnapasma for the pregnant women. As per my knowledge goes, as per text, it is not there, sir. 9 months Garbhini Paricharya, nowhere mentioned, only herbals mentioned, even metals also not mentioned by Acharya, but very few are there references, sir. This is my experience, sir. But in Karnataka, all documentation is there, sir. Especially in SDM Hassan, they conducted clear study under the Reena Kulkarni and one more Dr. Suhas Kumar Shetty. Suhas Kumar Shetty, now yesterday sir was there. Yes. Now is KLE principal. Previously was in Hassan under the research committee. They have conducted a lot of researches, sir, and published papers also available in KLE Belgaum and Hassan. Even we also conducted a small research because we wanted to see that whether any side effects are there. But we never find any liver toxicity and etc. But one more thing, sir, that depends upon the company who was preparing. That is the issue, because it is gold. And modern fraternity people, they never believe. That's why Swarnapasma, if it is nanoparticles, definitely it will not be going affecting any liver and etc. But preparation, it should be on standard protocol, like GMP certified pharmacy and etc. That's all. When previously we were using same Dudh Papeshwar only, and now we are preparing ourselves in our GMP pharmacy. This one I wanted to say that. Thank you for giving this opportunity. Right, sir. Very right, sir. Now, sir, Dr. Naresh has joined. What I was quoting, I hope he is Dr. Naresh Garg, who was yesterday with us. So he has different opinion on Swarnaprashan. Naresh ji, namaskar. Dr. Naresh Garg ji, welcome. मेरी आवाज आज तक आप तक पहुंच रही है? Just a minute. हाँ जी, thank you. I'm happy. Sudhakar ji, thank you so much. You have given us a lot of information. Just a minute. Naresh, yes. Namaskar. Naresh ji, namaskar. Namaskar. Just a minute. Yes. Today is the holiday, so you're resting. I'm this time. Okay, and the very interesting part, I don't मैं नाम नहीं जान पा रहा कि अभी जो जस्ट मेरे से पहले बोल रहे थे उन्होंने काफी अच्छे सुधाकर रेड्डी जी, हाँ जी, हाँ,
तो बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया उन्होंने स्वर्णप्राशन का। स्वर्णप्राशन पे चूंकि हम भी काम कर रहे हैं, हमारा भी छोटा सा वो है, तो मैंने अपना जो प्रिपरेशन, चूंकि स्वर्णप्राशन के ऊपर एक जो स्टडीकल डाटा है वो एसडीएम हसन के पास बहुत अच्छा है, और मैंने भी उनके बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं और वो बहुत ही अच्छे ऑथेंटिक है, और वहां पे बहुत अच्छा काम हुआ है। तो असल में स्वर्णप्राशन को लेके एक थोड़ा सा मिथ है कि वो पुष्य नक्षत्र में ही होना चाहिए। मैं इसका बहुत विरोधी आदमी हूँ। मैं स्वर्णप्राशन को एज ए थेरेपी के रूप में थेरेपी में यूज करना चाहिए, और वो डेली देना चाहिए। प्रतिदिन उसका प्रयोग करने पर ही बच्चों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और हमारे पास भी काफी सारा डाटाबेस है, लेकिन वो अभी मैं शो नहीं कर पाऊंगा कि मुझे ऐसी इतनी तैयारी थी नहीं। तो अगर हम प्रतिदिन देंगे, और मैं संहिताओं को अगर इस विषय में जोड़ के देखता हूँ, तो वहां भी प्रतिदिन देने के लिए ही इसको विशेष रूप से बताया गया है। चूंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ पार्ट निकाला है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुमार कल्याण रस का भी प्रयोग करना चाहिए, और कुमार कल्याण रस और स्वर्ण प्राशन में क्या सिमिलरिटी है, मतलब एक आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि क्या कुमार कल्याण रस से भी स्वर्ण प्राशन कराया जा सकता है क्या। तो मेरा अपना मत है कि कुमार कल्याण रस का जो लिखा गया है आयुर्वेद में, वो स्पेशली व्याधि समन के लिए लिखा है, और स्वर्ण प्राशन संदर्भ जो दिया गया है वो पूर्णतः रसायन पक्ष के लिए लिखा गया है। तो यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा यदि स्वर्ण प्राशन का सेवन प्रतिदिन करता है, स्वस्थ बच्चा यदि सेवन करता है, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी डेवलप होती है, वो बीमार कम पड़ेगा। लेकिन यदि कोई बीमार बच्चा भी स्वर्ण प्राशन का यदि सेवन कर रहा है, तो वहां पे इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा समय लगेगा। तो वहां पर हम कुमार कल्याण रस का सेवन प्रारंभिक अवस्था में करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन, चूंकि कुमार कल्याण रस 6 औषधियों का सहयोग है, वहां पे 6 औषधियां उसमें मिली हुई है। स्वर्ण भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, अब्रक भस्म, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, और स्पेसिफिक लोह भस्म का वो योग है। और वो सभी भस्म जो मिली हुई हैं, उनके कॉम्बिनेशन से उसको मिला के घी कुमार की रस में, उसमें घृत कुमारी रस की भावना है, और वो बहुत ही अच्छा अपना आप में एक योग है। लेकिन जब अगर कोई बच्चा हमारे पास इन्फेक्टेड आता है, किसी डिजीज से ग्रस्त आता है, तब हम उसको फर्स्ट कंडीशन में कुमार कल्याण रस का सेवन करा के हम जल्दी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन बाद में एक रसायन विधि के लिए हमें स्वर्ण प्राशन का ही प्रयोग करवाना चाहिए। और स्वर्ण प्राशन के हमें इतने एक्सट्रीम रिजल्ट मिले हैं। मेरे पास एक केस स्टडी है, राजस्थान स्टेट में ही भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है, और उन्होंने स्पेशली वो दो जुड़वा बच्चे हैं और वो बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। तो हमने अपना स्वर्ण प्राशन, चूंकि हम स्वर्ण प्राशन जो बनाते हैं वो अवले फॉर्म में बनाते हैं, हमने घृत की मात्रा और मधु की मात्रा भी रखी है। चूंकि बाजार में बहुत सारे स्वर्ण प्राशन जो मिलते हैं वो ज्यादातर में ड्रॉप फॉर्म में मिलते हैं, अवले फॉर्म में कम आते हैं। चूंकि जब अगर हम काश्यप संहिता का रेफरेंस चेक करें या सुश्रुत का रेफरेंस चेक करें, तो वहां पे कहीं भी आपको कोई भी रेफरेंस ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे उन्होंने घृत और मधु दोनों को यूज ना कर रखा हो। तो घृत की इंपॉर्टेंस, चूंकि आयुर्वेद में घृत जो है उसको नैनो, एज ए नैनो रसायन भी माना गया है। आयुर्वेद में घृत और स्वर्ण भस्म ही दोनों ऐसी चीजें हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। यदि हम उन्माद और अपस्मार चिकित्सा अध्याय देखें, चरक में देखें, सुश्रुत में देखें, और यदि स्पेशली अष्टांग हृदय में देखें, तो वहां पे सबसे ज्यादा घृत का वर्णन किया हुआ है कि जो घृत हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक ही है, हर चीज के लिए उन्होंने घृत का वर्णन किया। यदि हम काश्यप संहिता के स्वर्ण प्राशन के बाद में जस्ट यदि श्लोक देखना चालू करें, तो वहां उन्होंने अलग अलग व्याधि के हिसाब से श्लोक लिखे हुए हैं, और उन श्लोक के साथ में रेफरेंस लिखा है कि आप घृत का निर्माण इन द्रव्यों से कीजिए, और फिर आप मधु और जो भी आपको द्रव्य लगते हैं उनके साथ में आप इसका संयोग कीजिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मुझे लगता है कि अगर समय का कुछ पाबंदी है तो मैं अपना समय का उद्बोधन कम समय में ही इसको पूर्ण करना चाहूंगा, और अगर समय है तो मैं शायद 5 मिनट और चाहूंगा। पवन जी इज द पर्सन। नरेश जी, बिल्कुल 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 आपको सुनना चाह रहे थे हम सब। आपकी, नरेश जी, आपकी वहाँ पे जो स्टडी के बारे में 1-2 मिनट में थोड़ा बताना जी। आपकी जो स्टडी, जैसे एसडीएम हसन या बेंगलोर में जो काम चल रहा है, उसी तरह आपके वहाँ भी है कुछ डेटाबेस वगैरह पेशेंट हाँ, की? डेटाबेस हमारे पास है,
लेकिन चूंकि वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा वो सारी चीजें, तो वो मैं बिल्कुल आपको चूंकि आज मुझे पता नहीं था कि स्वर्ण प्राशन पे कुछ होने वाला है, तो मैं आपको शो कर सकता था वो। We will come back to this, Naresh ji. काफी important topic है. We will return to this topic. I'm happy आपके जयपुर से शर्मा जी है हमारे साथ. So he has raised very important point. Innovation की क्या हो सकती है. I'm grateful Sudhakar Reddy ji is here with us, that he has given us some very wonderful review, short review. कहाँ चल रहा है कर्नाटका में, कि काम कहाँ हो रहा. Very, very important. Sayantika ji, namaskar, and Sumita ji after that. Sayantika ji. सर, बंगाल में स्वर्ण प्राशन का अभी जो है सिनेरियो, जितना मैंने देखा पेशेंट्स के साथ डील करके हो, तो दो चीज आई कि एक है रूरल इंडिया से भी लोग दे आर इंटरेस्टेड इन स्वर्ण प्राशन. अगर उनको बेनिफिट्स पता चल रहा है तो वो आ रहे हैं. ड्रॉबैक कहाँ आ रहा है, मतलब लिमिटेशंस कहाँ आ रही है, कॉस्ट की, as they can't provide it. तो यहाँ पे मेरे को लगता है शांतिका जी, how much will it cost? कितने का तक एक ट्रीटमेंट के लिए, एक ट्रीटमेंट सर सिंगल डे डोज एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत हद तक प्रोवाइड करता है, तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू जस्ट टेकिंग दैट टिकट, ओपीडी टिकट चार्जेस, एंड रेस्ट द कॉलेज इज बियरिंग. But the thing is, how much is that? How much is that cost? That price I don't know. No, that price I don't know personally, but इतना पता है कि it's quite expensive. And private practice में तो करीब around 250, 300, 350 per dose cost आती है. तो practically it's not possible for the this rural India to cover that स्वर्ण प्राशन. ये होता है. और जो थोड़े हमारे हैं जो साइंटिफिक बेसिस पे है, मतलब जो नॉर्मल है, मीडियोकर है, दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी, बट द थिंग इज कि उनको साइंटिफिक एविडेंस चाहिए हर एक चीज में. So they want the documentation. This too is I'm finding this limitation in these two sectors. If you want to cover the rural India, they are interested. बट वहाँ लिमिटेशन आ रही है. तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट के साथ हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूशंस के साथ हो, अगर कोलैबोरेशन करा जा सकता है, तो आई थिंक ये और मैसिव प्रोजेक्ट हो सकता है. जैसे दूसरे स्टेट्स में बोल रहे हैं कि इतना रिसर्च हो रहा है, इतने स्टूडेंट, मतलब चिल्ड्रंस पे 2000, 1000, 3000. तो बंगाल में भी ऐसा होना चाहिए, तब जाके वी कैन कवर द पॉपुलेशन. और yes. Yes, sir. Thank you. I think your point about public health intervention as a public health intervention is very important. Yes. We will keep and the documentation, sir, and the documentation among the intellectual ones, because उनको यही है कि मेटल है तो क्या है, एविडेंस क्या है, ये है. तो we have two more people here. One is Sumita ji is there, but first Sudhakar Reddy ji, आप से सुन के फिर Sumita ji की सुने. But your point is noted, Santika ji. Public health issue, scaling up, गांव कैसे पहुंचे. To cover maximum, documentation is necessary, sir. बिल्कुल, Bengal में documentation is. We challenges to scaling up. I put a note here. अब Sudhakar ji and then. Sir, ji, namaskar. Sir, regarding Sayantika madam, what you told, to reach the rural area, yes, after seeing this response from the people from urban area in Karnataka, the IRES department, they came front to prepare Swarnabhasma, Swarnaprashana, and to give the people and free of the cost. But only one question came, because when you are going for the large population, definitely we need a clinical evidence. Without clinical evidence, the government will not take that one. That's why now they started, sir, but now they are waiting for the large clinical trials for all over the Karnataka. If it is proved, so we are conducting small scale, but they wanted clinical trials, the first phase, second phase, third phase, like that way, sir. Then the government of Karnataka is interested, because by seeing the people response from the urban area. But only thing that they wanted a clinical evidence, and that too from the large clinical trials.
definitely they are going to implement, sir, because in future also. Sudhakarji, we lost your voice. Thank you. I can see Pavanji has put our event for the next, for 332nd event is displayed on the screen here. Rajayog for protection and recovery, and we have speakers here. Professor Vinod Sharma from the former head of department for Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, Kamala Pandey ji from Ghaziabad, Alok Sharma ji, who's here with us always from Delhi, and Mrinal ji from Rajkot. Pavanji, thank you for bringing more people to our platform for this wonderful event. Before we give the floor back to Pavanji, last question from Sumita ji. Sumita ji, namaskar. नमस्कार सर. It is not a question actually. थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रहे थे कि आप अगर मतलब गर्भिणी में जब बच्चा अभी आया भी नहीं है और प्रेग्नेंट है लेडी, उस वक्त हमें स्वर्ण भस्म देना चाहिए कि नहीं, तो उसका रेफरेंस मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा था, तो मैंने उसको बुक से निकाल के फिर से देखा और एग्जैक्टली इन चरक संहिता सारी स्थान चैप्टर नंबर 8 गद 19 इट इज रिटन देयर. मैं सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ दे रही हूँ कि सोने चांदी या लोहे के पुरुष के आकृति की छोटी मूर्तियां बनाकर उन्हें आग में तपाकर अग्नि के सदृश वर्ण वाली करके तदंतर उनको एक अंजलि दही दूध या पानी में डालकर पुष्य नक्षत्र के दिन सब पी जाए. दिस इज कॉल्ड पुंसवन कर्म इन अ वे अकॉर्डिंग टू चरक संहिता. सो देयर इज अ रेफरेंस टू गिव स्वर्ण भस्म इन दिस वे टू द गर्भिणी इन द पुंसवन कर्म विधि. पुंसवन कर्म मतलब लगभग दूसरे या तीसरे मंथ के टाइम पे दिया जाता है. I think सुमिता जी थोड़ा रेफरेंस डाल दीजिए जी इसमें चैट बॉक्स में. अगर हाँ सर, ओके सर, मैं डाल आपकी तरफ से, if you put it there, please put it so that it stays in the chat box कि हमारे साथ रहे इसकी. I hope it is convenient for you to put. हाँ जी, थोड़ा चैट बॉक्स में डाल दीजिए. जी जी सर, शायद हमारे साथ है विष्णु जी, and I am going to Sudhakar ji, last comment from Sudhakar ji, and then the floor is back to Pavan ji. No, the Pumsavana karma is not 6 months. Before conception only Pumsavana karma. I am telling that 6 months onward there is no reference of the giving Swarnaprashan to the pregnant lady. Pumsavana karma is not 6 months. It is before formation of the fetus only. Before the 1.5 month or 2nd month only. Pumsavana karma according to Ashtanga Hridaya and according to Charaka Samhita also. After 6 months there is no Pumsavana karma as per my knowledge goes. Because already fetus sex decided. So we can't change that before that only. I think it is before 3 months, one reference, before 1 and 2 months, one reference. That is same I was saying, sir. दूसरे या तीसरे month में ही ये होता है. So thank you so much. We will draw the discussion. Very, very exciting day today. I am so happy Sudhakar Reddy ji was here and he has given us Karnataka mein jo chal raha. Thank you for addressing that question about large scale activity or aapke Karnataka mein kya chal raha. This is very, very important for us to know. Thank you ji. Sudhakar Reddy ji, thank you so much. Suhash ji is always with us. Kulkarni ji, she has presented before, so thank you again from my side. Pavan ji, thank you so much for bringing so many exciting people today. A lot of people from West Bengal here with us today, and wonderful discussion, wonderful event. Naveen ji couldn't stay with us. He's gone. Harish ji couldn't stay with us from Toronto. So, but all of them have contributed there. Rajan ji, and your experience is valuable every day for us. So I am going to draw this event from my side to a close and return the floor to Pavan ji. Pavan ji, namaskar. Thanks to you once again. Thank you, sir, for excellent moderation. Thank you, sir. Pavan ji, thank you once again for bringing so many people. We are looking forward to the event, 332nd event. Jo aapne Thank you. So nice of you, sir. Thank you, ji. Thank now you. I would like to request, before Agnihotri ji, Dr. Vishnuprasad Sharma ji, former principal, Guwahati Ayurvedic College from Guwahati, President Vishwa Ayurved Parishad,
Go ahead. Welcome. Okay, thank you. Namaskar, Pawan Kumar Sharma ji, respected Professor Madan Thangabalji, for a wonderful webinar. Sorry, I could not join early because now, today I am at Sikkim. I dropped my daughter at NIT Sikkim for MTech course. So Wonderful. I joined lately. Congrats. Joined lately. She joined in MTech and EC course. So for that, sorry, I could not join from the beginning. Anyhow, now I am at hotel. I joined. So wonderful discussion was there. So I offer my sincere thanks all the speaker and participant from my side. Thank you. Thank you. Namaskar to Madan Thangabalji, Pawan Kumar Sharma ji, PK Agnihotri ji, and all distinguished persons. Namaskar. Shad Pavanji is here with us. Pavanji, okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. Now I would like to request Professor VK Agnihotri ji. VK Agnihotri, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pawan Sharma, sir. And our regards to Professor Madan, sir, Professor Sharma ji, and Professor Reddy ji, and all that. नमस्कार. मैं समय का बाधा देखते हुए क्या है, हम लोग इतनी बातें होती घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं. We start from center to reach radius and then from again radius to center. अभी इससे पहले मैं अपने स्पीकर के बारे में कुछ बोलूं. 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम आधे मिनट में कहना चाहूंगा, क्योंकि उनका आंसर तो दिए गए, बट स्टिल आई थिंक आई मे एड ऑन समथिंग. लाइक पहला जो रखा था सभी लोगों ने मिलकर, मैं किसी के नाम लेके नहीं बता रहा हूँ, कि इसको एक्सक्लूसिवली पुष्य नक्षत्र में ही देना चाहिए स्वर्ण या किसी भी दे सकते हैं. तो जैसे पवन शर्मा जी ने बताया कि हम उसको मंथली बेसिस पे कर सकते हैं या एग्जैक्टली पुष्य नक्षत्र पे करें. तो हम जानते हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी और इसके ज्यादा 27 नक्षत्र होते हैं. एक स्पेशल होता है अभिजीत. तो 27 नक्षत्र बनते हैं, इसलिए या तो 27वां दिन आएगा या 32वां दिन आ सकता है, दैट डिपेंड्स. तो वो कर सकते हैं. अन्यथा डेली देने पर और बिना पुष्य नक्षत्र देने पर और बिना देने पर इसके 2 मॉड्यूल बना के इस पर प्राप्त होने वाले लाभ पर एक स्टडी की जा सकती है. वो बिल्कुल जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड एंड रिसर्च ओरिएंटेड वर्क हो जाता है. दूसरी चीज आई थी सामने की वो सेंटर इसके जीप के बीचों बीच में रखते हैं, ऐसा विधान बताया गया. तो बीच उन लेडी के लिए, अपनी संगीता के लिए शायद, कि वो बीच में ये मधुर रस के आस्वादन की बात आती है. तो इसलिए सर्पी और मधु दोनों का भी, या जैसे हम शीतकारी करते हैं तो भी, या पेपरमेंट का टैबलेट चूसते हैं तो सेंटर में ही रख के चूसते हैं, तभी उसका आनंद आता है. तो मधुर रस की प्रायोरिटी शायद इसको ही इन्होंने को लिया होगा. तीसरी चीज कि हम अन्नप्राशन को किस लेवल पे दें, उसको 6 महीने की गर्भणी दे सकते हैं, नहीं दे सकते. उससे पहले वो पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा कि हम मेल फीमेल को बिफोर द फीमेल लेडी गेटिंग प्रेगनेंसी उसको दे सकते हैं, एज पर द बॉडी वेट एंड एज पर द एज. वो हम वुड बी फादर मदर को दे सकते हैं, सो दैट इट मे प्रोबब्ली गो टू द फीटस द कमिंग. और फीटस के लिए कहा जाता है पुंसवन संस्कार सवाल है, लीगली इसको अब कोई नहीं करता, मना कर दिया गया है. लेकिन अगर ये होता है तो दूसरे महीने की प्रेगनेंसी पूरी हो चुकी हो, तीसरा महीना कंप्लीट ना हुआ हो, उसमें आने वाले सोमवार और मंगलवार को श्वेत वस्त्र पहना के श्वेत रंग की ही वस्तु लड़की खाती है, लेडी खाती है, प्रेग्नेंट लेडी, चाहे दूध की बनी हुई खीर हो, मखाने खीर हो, कुछ भी. और तब उसको ये कुमार कल्याण रस देने की बात थी, चाहे वो सफेद बर्फी की मिठाई में देते हैं. हमारे मित्र हैं मेहुला ब्रह्मा जी ने दिया करते थे. 97% रिजल्ट थे, यहाँ तक लिंग निर्धारण के बीच में करने की बातें हैं. तो लेकिन जब पैदा होने के बाद जो पुंसवन संस्कार की बात आती है, उसमें जितनी आज नॉलेज आई है उसके तहत ये तय बात है कि पुष्य नक्षत्र का ध्यान है. अगर अभी दूसरे नवीन साहब बोल रहे थे कि नक्षत्र की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे तो बड़ा सारा काम खत्म हो जाएगा. हम लोग निर्विषीकरण के क्रम में जब हम हंसोदक पढ़ते हैं तो भी अगस्त नक्षत्र की बात करते हैं. हम जब भी कोई औषध विशेष को ग्रहण करने की बात करते हैं तो हम विशेष रूप से देखते हैं, जैसे लांगली की हम जड़ निकाल के और सामान्य प्रसव कराने के लिए कहते हैं तो भी हमें नक्षत्र को और दिन तिथि बार नक्षत्र देखना पड़ता है. तो ऐसे हम ओवरलुक नहीं कर सकते. नहीं तो ठीक है, जैसे कि हासन किया गया 2000, 3000, 4000 के डाटा मिल जाएंगे, लेकिन क्या क्वालिटी कंट्रोल रहा उस पर जो प्रिपरेशन उन्होंने दी, अथवा उसका कोई ऑब्जर्वेशन हुआ जो बच्चे बेनिफिटेड हुए.
इनको भी हम क्लासली देखना चाहिए, नहीं तो हमारा किया जाने वाला पुंसवन संस्कार भी शायद इसी उसमें फंस जाएगा कि इसके कोई खास रिजल्ट नहीं है। अब वो एक टेंडेंसी होगी गतानुगतिक लोके वाले कि बच्चों को पुंसवन संस्कार किया था, यहाँ से लेके नॉर्वे तक उन्होंने खबर मिल गई वो करा रहे हैं। सर आपने ये क्वेश्चन दिया कि यूके में शायद उससे करते हैं, सिल्वर स्पून कहते हैं, शायद उसी बेसिस पे डायलॉग बना होगा कि ही बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। शायद वो डायलॉग इससे टैली कर जाएगा कि सिल्वर और गोल्ड को टच कराने वाली बात आती है। रही बात ये कि गोल्ड प्रिपरेशन के बारे में जब पवन शर्मा जी बात कर रहे थे, अगर ये इलेक्ट्रिक फर्नेस जब तक नहीं बनी थी, काउ डंग केक की ही यूज करते थे, तो तब क्या जय मंगल रस, राज मकान के रस, डायरेक्ट स्वर्ण भस्म, स्वर्ण बसंत मालती रस, ये बसंत कुसुमाकर रस, ये नहीं बना करते थे। ये तो बहुत बात है, जीएमपी को देखते हो ऐसे तो हमारा आयुर्वेद नष्ट हो जाएगा, पूरी वेबिनार करने की थीम ही खत्म हो जाएगी। हम देश विदेश के लोगों को ले रहे हैं, उनकी हम साइंटिफिक अप्रोच को आज अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट क्या हम अपने इसलिए कि अपने आयुर्वेद के मौलिक रूप को ही छोड़ दें? ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे बच्चों ने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बात बताने की कोशिश की, स्वर्णप्राशन अब आज प्रैक्टिस में आ गया है। और हमारे यहाँ जैसे उन्होंने बताया स्कूल में निःशुल्क सेवा पर होता है, भले इसकी कास्ट 250 रुपए आती हो, हम डाबर से स्पॉन्सर कराते हैं, झंडू से कराएं, कहीं कराएं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल वाली बात बिल्कुल सही है। तो टोटल ये तो हुई हमारे कुछ चीजें, इसमें जो हमने रखा कि पुष्य नक्षत्र की को हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, और पुष्य नक्षत्र के लिए हमें 27 दिन इंतजार करना पड़ेगा। रिपीटेड डोज के लिए हम एग्री करते हैं कि जिसको बच्चे को पहले मिल गया, फिर वो तीसरे महीने में मिल जाए, चौथे मिल जाए, जब उसकी मदर को या उसके पेरेंट्स को कन्वीनियंट हो, जैसे कि इसकी रिपीटिशन ऑफ वैक्सीनेशन करते हैं। अब हम बात आते हैं अपने आज के प्रेजेंटेशन पर। हमारे सबसे पहले जो वक्ता रहे हैं डॉक्टर ज्योति लखानी जी, उन्होंने इस पर बहुत गहरे से प्रकाश डाला। उससे पहले हम लोग इतनी नॉलेज नहीं थी कि पुंसवन संस्कार में क्या कुछ अंदर काश्यप संहिता में वर्णन किया गया है और कैसे कैसे वो इस चीज को इन प्रैक्टिस ले रही हैं। रही बात उन्होंने जो विषकन्या बनाने के कॉन्सेप्ट से टैली करने की कोशिश करी कि यदि हम स्वर्ण और घृत और शायद इक्वल मात्रा लेकर चलते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, एंड दैट नीड्स अगेन दैट्स अ थर्स्ट एरिया वेयर वी कैन गो फॉर रिसर्च वर्क एंड कैन गेट द असेसमेंट। एंड उसके बाद हमारे जो दूसरे वक्ता रहे हैं, उन्होंने इस चीज पर और अच्छे से प्रकाश डाला। हमारे डॉक्टर विलास जी रहे, उन्होंने प्रैक्टिकल बातें बताई, ये अच्छी बात है, ये सब लोग कर रहे हैं, केवल आज वेबिनार में अपीयर होने के लिए अपनी बात नहीं रखी, दे आर प्रैक्टिसिंग विद दिस स्वर्णप्राशन एट देयर एंड एंड गेटिंग द रिजल्ट, सो इट्स क्वाइट गुड। और तीसरे हमारे जो रहे सोरी साहब मैडम, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात करी, सुनीता जी ने भी सारी बातें की, बड़ा अच्छा लगा कि इतना ये लोग वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो फायदा मिल ही रहा होगा, इफ नॉट 100%, 60%, 65%, but still a lot of modification is required with the help of the text and with the help of the our senior experienced person, those who are having knowledge. रही बात ये कि गर्भणी परिचर्या के लिए अगर वास्तव में स्वर्ण का कोई उपयोग करना है, तो आज के टर्मिनोलॉजी पैरामीटर से पहले ब्लड प्रेशर देख लें, नींद देख लें, बॉडी इम्यूनिटी देख लें, और जिसके लिए हम चाहते हैं बच्चे का भी हम अग्नि देखना है, बच्चे का मेटाबॉलिज्म देखना है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए देखना है, और पोटी के उसके रंग का देखना है, तो ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही इस पर इसका इफेक्ट देखें, और हर बेनिफिटेड बच्चे की मदर से कहें कि वो इसको अपने क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखे, और आने वाले डेवलपमेंट जब वो सेकंड बार 30 डेज बाद आए, 90 डेज बाद आए, तो बताए कि पहले बच्चे में ये पैरामीटर्स है, अब ये पैरामीटर, ये वेट गेन है, ये उसकी स्लीप इंप्रूव है, ये उसकी ग्रोथ अच्छी है, ये उसकी इंटेलिजेंशिया है, उसको गायत्री मंत्र, उसको मृत्युंजय महामंत्र, ये सब रटाना शुरू करें, और फिर उससे भी टेस्टिंग हो जाएगी। हमारे भी छोटे ग्रैंडसन वगैरह सब हैं, उनको उनकी मदर मेहनत कर रही तो कर रहे हैं। तो आज की वेबिनार बहुत ही अच्छी रही, आई ओपनिंग और बहुत ही सम्मानजनक रही। हमारे विष्णु प्रसाद जी बाद में जुड़े, उनका धन्यवाद, उनके बच्ची का एमटेक में एडमिशन का बहुत बहुत उनको बधाइयां, और हमारे सारे साथी ऐसे जुड़ते रहे। सबको ग्रीटिंग्स आज के स्पीकर्स को, और हमारे सारे सीनियर पर्सन को बहुत बहुत रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू पवन शर्मा जी। धन्यवाद। अग्निहोत्री हाँ, डोमा जी को नमस्कार। डोमा जी मिस कर गए, डोमा जी नहीं, वेल ये जो है ना सुषुम्नाग्नि, कमलाग्नि, बड़बाग्नि, ये शब्द को मिटा दीजिए शास्त्र को। जो थर्मल वैल्यू से अगर देखते हैं तो आज के इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल आप सही कहे हैं, काउ डंग से जब करते थे, अभी भी इसमें बताओ, बोलो सुषुम्नाग्नि क्या होता है, कमलाग्नि क्या होता है, बड़बाग्नि क्या होता है, क्या थर्मल वैल्यू होता है? अभी तो नींद नहीं लगा होगा पवन कुमार शर्मा जी को शायद। और दूसरी बात बता रहा हूं मैं, अनइक्वल प्रोपोर्शन में ही उसको अमृत माना जाता, घी एंड शहद को,
अगर इक्वल प्रॉपोर्शन में होते हैं तो पॉइजनस माना जाता है। ये गांव के लोग भी जानते हैं। कहाँ की बात बोल रहे हैं? I gave the instance over albino rat. It is poisonous, definitely. And Domaji. actually, it was supported by some samitas because I am not well versed by college lines where BAMS was not there by my time joining in Ayurveda by 1970, 69-70 here in Andhra Pradesh. I feel it unfortunate that common knowledge is missed while referring with Anupana. Go for Saptamrutaloha. There it is mentioned in unequal proportion of clarified butter and honey should be served. You can see which should be more and which can be less. It according to the depends of the constitution of the patient and at the same time the season. It is at the discretion of Vaidya. What to say? समझ गया. Brief. How much brief I should do? I cannot tolerate. Domaji, your point is accepted, and we agree completely that वो जो detail जो चाहिए हमें, that is sometimes forgotten, and I think that is it is left to the teachers. I think the teachers have to do the job correctly, and Jaise Ramadas ji is telling us about Sanskritam and understanding every word, uski nirukti and everything. It's very deep science that we are going into. So Ramadas ji has sophisticated Sanskrit. Sophisticated. I congratulate him that he should lead while teaching Ayurveda. Yes, and I hope that we can keep this in mind for as we improve our discussions here and also enthuse our education system to consider these points. Domaji, thank you so much for being with us. We one more appreciate. Thing. I never raise hand. Unfortunately, my touched that lower hand. That is unfortunate for me. We will keep in mind that you are always watching us. Every word that we are saying, you are watching us. So that is the biggest credit that we have if you stay with us. I take the floor back to Pavanji, and we are grateful that we have critics like Domaji who is watching every word for us and improving us as we go along in our discussion. Domaji, thank you. Good. Sorry, Madanji. My Gurudeva didn't teach कि critic नहीं करो. हमेशा जो है ना improve करो, support करो. I think this is the point. He advised no criticism, no out of Panchadasha Shila. It is one. You should not go for criticism. But I cannot tolerate where there is subversive or substandard. Please catch us every time it goes wrong. We will remember this. Pavanji, 9:10 हो गया. Good night, sir. 9:13. Agnihotri ji, नमस्कार.